Learning basically is you take action. जो एक normal बंदे और एक winner में फर्क है ना, it is the ability to take action. What differentiates the 1% is action. So you have to ask yourself, do you really have the balls to take action? Or are you just continuously going to keep watching videos like this जहाँ पे लोग आपको कोई नसीहत दे रहे हैं? Because trust me, this is just mental masturbation. I think that is the problem with most people कि most people are just too arrogant. मेरे साथ इतनी दफा हुआ कि when I started making content, तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. ये जो issue आपने discuss की इतना deep rooted है ना कि usually the leg pullers are the closest people to you. In your opinion, what's one thing that most people get wrong about success or winning? तो मेरी नज़रों में ना सबसे ज़्यादा common mistake है. They think winning is copying winners. That isn't the story. Winning is writing your own story. Basically, to grow in life, you need to do stuff you have never done before. On that topic, do you believe in morning routines or do you think they're rules? यार मैं सच बताऊँ नहीं, I don't. You don't. Modern day society के अंदर इस तरह फील किया जाता है कि it's all about 50-50 and men and women should be equally contributing to the household. मेरे opinion में that's not the case. बांट किया हो. कोई ना कोई बांट किया हो. उसके बाद जो स्प्राउट आता है ना, Something just went ballistic crazy कि मतलब सारा कुछ जो है वो F up हो गया. अब जो है वो इसको किसी तरह उठाना है. But वहाँ पे एक और चीज पता है क्या involved होती है? Male ego. Ask yourself कि do you really think कि there is some truth to it? Because there might be. Be introspective. I think introspection is very important because smart people learn from their mistakes, but the smartest people learn from the mistakes of others. how to deal with failure and setbacks. I take them personally. I honestly take every failure and setback personally. By the way, this video is brought to you by my private community Kafla. Kafla is a private community which is hosted on school.com जो मैंने खुद start की है. And इसके अंदर basically we help you become the kind of son that your parents can be proud of. We teach you skills जैसे कि personal branding, Airbnb subleasing. इसमें we teach you how to become confident, have good communication skills, the art of bodybuilding, the art of biohacking. इन सब चीज़ों के अंदर हम लोग आपको teach करते हैं. Me, my friend Shahid Tawseef is a part of it. Hassan Mahmood bhai, which is one of the biggest names of bodybuilding in Pakistan, is a part of that community. इस community के अंदर जो है वो एक community forum होता है जिसके अंदर सारे लोग जो है वो actively एक दूसरे के साथ interact करते हैं. You can meet people in your area who are in the same headspace as you. यानी कि you will be surrounded by high quality individuals which will help you become even better and accelerate your growth in your self improvement journey. उसके अलावा उसके अंदर एक classroom section भी है जिसके अंदर we have full length video guides जिसमें we've covered specific topics of self development. सामने तुम्हारी screen पे इस वक्त आ रहे होंगे. इन सारों के ऊपर हम लोगों ने full length guides बनाई हुई है. तो these are resources that you can consume. और उसके अलावा there is a calendar section. उसके अंदर हम लोग bi-weekly calls hold करते हैं जिसके अंदर we address your questions in specific. And उसके अलावा जो है वो there's leaderboards, there's a whole amazing community experience. So if you want to join that, the link for that is on the top of the description. I'd love to see you be a part of Kafla and inshallah see you inside and enjoy the podcast. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Pipe Bomb podcast. बहुत से लोग मेरे ऑडियंस के अंदर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आई शुड स्टार्ट अ पॉडकास्ट एट सम पॉइंट एंड योर विश इज़ माई कमांड. माई पॉडकास्ट इज़ फाइनली लाइव. इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बेसिकली एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करे होंगे, रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट. तो इसके अंदर जो है वो इसी तरीके से मेरा दोस्त शहीद तौसीफ मेरे सामने बैठा हुआ है, हु विल बी इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ शॉर्टली. हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस को जो है वो रिट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर की हुई है एंड विल बी गिविंग यू गाइज आर अनफिल्टर्ड व्यूज़ ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. एंड इसके अंदर जो है वो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि यार जिस तरह यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर अक्सर हम लोग एक सेट टाइमलाइन के ऊपर चल रहे होते हैं कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करनी होती है और हम लोग उसके अंदर स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट गोज इनटू इट एंड वी कांट रियली स्पीक आवर हार्ट्स आउट. तो इसके अंदर वील बी स्पीकिंग आवर हार्ट्स आउट एंड गिविंग यू अ चांस टू get to know us unfiltered and completely off the hooks. I guess that would be the word that I'm looking for. So I'm really excited for the chapter that awaits inshallah. And इस specific podcast के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे on the topic the mindset of a winner. तो I have my friend Shahid Tawseef here with me and Shahid, please introduce yourself and उसके बाद podcast start करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीद तौसीफ है. मैं उज़ैर का बहुत पुराना दोस्त हूँ कि हम लोग शायद ए लेवल्स में साथ थे, ओ लेवल्स में भी साथ है एक्चुअली. ओ लेवल्स में हम दोनों साथ थे. फिर हम दोनों अलग अलग काम करना शुरू हो गए. हम लोग का माइंडसेट बहुत सिमिलर था एक्चुअली. हम इसी वजह से इधर साथ बैठे हुए क्योंकि एक माइंडसेट शेयर करते हैं. हमने कहा कि रियूनाइट करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, हेंस दिस पॉडकास्ट. अब हम शुरू करते हैं इसी पहले सवाल से उज़ैर आपसे. सर, व्हाट इज इन योर ओपिनियन द विनिंग माइंडसेट? यार मेरे ओपिनियन में if I had to describe it and center it down to one thing in specific, I would say कि it's a difference between a pessimist and an optimist.
जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं ना, और मैंने भी और तुमने भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर ऐसे दोस्त देखे होंगे जो यार मतलब हमेशा एक पेसिमिस्टिक माइंडसेट रखते हैं कि यार मतलब हम लोग XYZ बिजनेस के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज दिस फील्ड इज़ टू सैचुरेटेड, या हम लोग XYZ अपॉर्चुनिटी को जाके अवेल नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इट्स टू अनकंफर्टेबल. पीपल aren't really in the mindset of pushing themselves out of their comfort zone, and that is so important in today's day and age. हम लोग मतलब अपने बेड्स के साथ इतने सिवियर किस्म के अटैच हुए हैं, हम अपने फ़ोन्स के साथ इतने सिवियर तरीके से अटैच हुए हैं कि भाई वी जस्ट वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. What exactly defines or differentiates a pessimist from an optimist is an optimist starts first and fixes later. जो pessimist होता है वो वैसे ही अपने आप को सिचुएशन से आउटप्ले कर देता है बिकॉज ही थिंक्स के यार एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट हिम, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस. तो ऑप्टिमिस्ट, अब मैं ये चीज़ एक स्टडी पढ़ रहा था अबाउट व्हाई डम पीपल are more successful than intelligent people. Yes. The reason dumb people are more successful than intelligent people is because dumb people have a level of self-belief that intelligent people don't. Intelligent लोग जो है वो अपने आप को एक सिचुएशन को स्टार्ट होने से पहले ही अपने आप को उससे आउटप्ले कर देते हैं. उन लोगों के दिमाग में सारे के सारे सिनेरियोज चल रहे होते हैं कि वी कांट स्टार्ट XYZ थिंग बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, और उस वजह से वो अपने आप को उस सिचुएशन से आउटप्ले कर देते हैं. बट जो डम बंदा होता है ना, उसे एक इतना अनअर्थिंग लेवल ऑफ सेल्फ बिलीफ होता है कि वो कहता है कि यार मैं बस कर लूँगा, किसी ना किसी तरीके से कर लूँगा. तो आई थिंक ये एनालिसिस पैरालिसिस और ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग से बिल्कुल पाक होता है एक विनर. अ विनर इज समवन जो एक ऑप्टिमिस्ट है और जो अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अपने हाथ से बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक सीज करता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग समवन हु जस्ट plays himself out of those situations by just overthinking about stuff, man. तो मतलब in my opinion that would be something कि जो मैंने personally भी अपनी लाइफ के अंदर फील किया है कि that is when my life started improving. जब मैंने चीज़ों को इस लेंस से व्यू करना शुरू किया कि यार I'll just start first and fix later. मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी इसी तरह किया, जो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है, कि थिंग्स weren't perfect at the start but I decided to start anyway. तुमने अपनी Airbnb के साथ भी exactly इसी तरह किया था कि मतलब you didn't even have the app on your phone. I did not. And you just started anyway. So that's the difference between a winner and a loser. A loser will just outplay himself out of those situations. Winner कहेगा कि यार बस देख लेंगे. हो जाए. What's your opinion on it? Bro, मेरे लिए I 100% agree with you. For me, a winner is a person who is a student of life. Above all else, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें. A winner is a plethora of things. लेकिन above all else, he is a student of life. मेरा जो मुराद है student of life से basically, they go beyond anyone else to learn more. जो learn more से मेरी बात ये होती है कि learning basically is कि आप you take action. जो एक नॉर्मल बंदे और एक विनर में फ़र्क है ना, इट इज़ द एबिलिटी टू टेक एक्शन. दे अब्सॉर्ब नॉलेज फ्रॉम वन एंड और दे आउटपुट इट फ्रॉम द अदर, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग. ये एक विनर का माइंडसेट होता है. अब इसी बात में हम आते हैं कि मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो तुमने भी बात की कि इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, हम इस चीज़ को किस तरह ओवरकम करते हैं कि मतलब अगर किसी बंदे ने कुछ शुरू करना है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यार मैं किसी बंदे को तुम पकड़ोगे ना, उससे बोलोगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है, वो तुम्हें 10 वजूहत बता देगा अपनी ज़िंदगी किस तरह इंप्रूव करनी है. लेकिन उससे पूछो कि तुम उस पर काम कर रहे हो, वो उस पर काम नहीं कर रहा होगा. ऐसा क्यों है यार? ऑनेस्टली टू ऐड टू योर पॉइंट, मेरे ओपिनियन में ज़्यादातर लोग एरोगेंट होते हैं. उन लोगों को जो है ना, वो इस चीज़ की एग्जैक्टली समझ नहीं होती कि यार जो अगला बंदा, जिससे अगर आप कोई चीज़ पूछने के लिए गए हो, जिसने वो चीज़ अचीव की हुई है जो आप अचीव करना चाहते हो, एंड यू आर देयर टू जस्ट लर्न फ्रॉम हिम. मेरे साथ पर्सनली इस तरह हुआ कि यार एक दफ़ा समवन इन माई सर्कल अप्रोच मी सेइंग कि यार आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑनलाइन ना, तो मैं एग्जैक्टली किस तरीके से कंटेंट को अपने चला सकता हूँ और किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लेके चल सकता हूँ टू ऑप्टिमाइज सक्सेस फॉर मी. अब एट दैट पॉइंट मेरे आई थिंक 150,000 फॉलोअर्स थे ऑन इंस्टाग्राम. तो ऑब्वियसली आई वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी जहाँ पे ऑब्वियसली आई नो मोर देन द अदर पर्सन. Yes, definitely. अब आई बेसिकली ट्राइड माई बेस्ट कि यार मैं इस बंदे को जितना ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ ना, उतना ज़्यादा हेल्प करूँ. आई वेंट आउट ऑफ माई वे, मैं उनके साथ बैठा. आई वेंट ऑन फॉर ट्राइड गोइंग ऑन फॉर लाइक 1.5-2 hours, tried to teach him कि exactly how to grow his social media profile. बट वो ऐसे है कि यार मतलब वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे. ही वुड जस्ट स्टार्ट इंटरजेक्टिंग मी. वो कहेंगे कि यार नहीं ये वाला काम भी मैंने किया हुआ है, नहीं ये वाला काम भी नहीं चलता, ये तो मैंने देखा हुआ है. मतलब वो ही इज नॉट इन द माइंड सेट ऑफ अब्जॉर्बिंग दैट इन्फॉर्मेशन एंड लेटिंग हिमसेल्फ लर्न फ्रॉम इट. आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल कि मोस्ट पीपल आर जस्ट टू एरोगेंट.
यानी उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि एक स्टूडेंट मेंटालिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई टू दिस डे डेडिकेट 30 मिनट्स ऑफ माई डे ड्यूरिंग, मतलब मैं सोने से पहले आधा घंटा लगाता हूँ और उस आधे घंटे के अंदर मैं कोई भी किताब पढ़ लूँगा, एनी बिजनेस बुक और एनी इशू इन स्पेसिफिक जिसके बारे में मैं उन दिनों में लर्न करना चाहता हूँ. रिसेंटली आई बिन रीडिंग साइको साइबरनेटिक्स, और उसमें आई एम लर्निंग लॉट अबाउट सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. वो बेसिकली एक प्लास्टिक सर्जन ने लिखी हुई और उसके अंदर ही इज टेलिंग अबाउट हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव इट इज़ फॉर पीपल to people's self image once they have life changing cosmetic surgery. यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की नाक टेढ़ी होगी ना, उसने अपनी नाक सीधी करवा ली कॉस्मेटिक सर्जरी से, तो उससे उसकी सेल्फ इमेज कंप्लीटली चेंज हो जाती है. दे जस्ट टर्न इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. तो आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई कैन इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव माई बिजनेस, माई लाइफ, माई माइंड सेट. बट कुछ लोगों को लगता है कि बस वही सब कुछ है और उन्होंने जो है वो ज़िंदगी के अंदर सब कुछ अचीव कर लिया. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. हैव यू पर्सनली बीन अक्रॉस द टेबल फ्रॉम समवन लाइक दिस? मल्टीपल टाइम्स, अ प्लेथरा ऑफ टाइम्स बाय द वे. मैं जब ना एक्चुअली आई यूज्ड टू बी 140 kg, शायद तुझे याद हो. मैं आई वाज फैट. उस टाइम पे ना मैंने शुरू किया जिम. आई वाज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड. जैसे बोलते हैं ना कि दैट वॉज अनहेल्दी ऑब्सेशन, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि आई डिडंट लैक द नॉलेज मैं उस चीज़ को इतना काम करूँ. लेकिन आई स्टिल डिड इट, आई वेंट थ्रू इट, आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट. लेकिन उसमें मैं अपना खाना भी खुद बना रहा था. मैं अपना खाना ऑलमोस्ट रोज़ उबली हुई मुर्गी सिर्फ खा रहा था. और मैं अपने दोस्तों के सामने बैठा हुआ ना, हम लोग, जिस तरह मेरा एक दोस्त है उसका हॉस्टल होता था, सब उधर बैठ के मिलते थे, बैठते थे, उधर ही बातचीत गपशप होती थी. और उधर मैं अपना खाना खा रहा होता था और मैं साथ साथ मुझे अपकाइयाँ आ रही होती है, मतलब आई जस्ट वॉमिट फूड आउट एनी मोमेंट. और वो मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे कि ये कैसे. लेकिन एक पॉइंट ये उनके लिए ये पॉइंट भी एक बार ज़रूर आता है कि अब वही लोग मुझसे पूछते हैं, जिम एडवाइस के लिए मेरे पास आते हैं. मतलब एट दैट टाइम उन्होंने मेरा निकनेम रख दिया प्रोटीन, क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर जाता था, मुझे अपना प्रोटीन गोल हिट करना होता था, मैं कहता था कि यार मुझे ना ये मंगाना है, मेरा प्रोटीन गोल पूरा होगा. और वो आगे से उन्होंने मेरा नाम ही प्रोटीन रख दिया. मतलब इस मजाक से अब इस पॉइंट पे वो लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे साथ जिम जाओ, हमें डाइट बना के दो, सब ये चीज़ें. मतलब इससे ये भी चीज़ आती है बीच में कि यही लोग आप दे लीचिंग ऑफ ऑफ यू. दे एक्चुअली ट्राई टू पुल यू बैक. सिर्फ वही नहीं कि वो सीखने के अलावा दे एक्चुअली पुल यू बैक कि इस तरह हो ही नहीं सकती ये चीज़. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन पीपल लाइक दोस? उनसे किस तरह डील करते हो? पता है क्या, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये जो उन्होंने तुम्हारा नाम रखा है ना, दिस वाज बेसिकली देम पुलिंग यू डाउन. क्रैब्स इन अ बकेट वाली एनालॉजी है कि भाई ये बंदा जो है ये हमारे से ऊपर जा रहा है, ही इज वर्किंग ऑन हिज फिजिक, ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को और अपने माइंडसेट को एलिवेट करना चाह रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड. Let me just conveniently pull this guy down to where he belongs. Stay within us. कोई ज़रूरत नहीं है फिट होने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने माइंडसेट को एलिवेट करने की. Stay within us. Stay a loser for life. That is what they were trying to do, and that is what 99% of people in our society, especially in generally tried to do. मेरे साथ इस तरह इतनी दफ़ा हुआ कि when I started making content, तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. They would say कि यार क्या तू cringe content बना रहा है. And मतलब ये जनरली बहुत ज़्यादा होता है. व्हेनेवर यू ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ द नॉर्म बट इज़ गुड फॉर यू, हमेशा लोग जो है वो तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार ये छोड़ दे, हम चाहते हैं कि तू हमारे जैसे ही रहे. वो बेसिकली बोलेंगे यार छोड़ दे, बहुत सैचुरेटेड है. तेरा निक नेम रख देंगे. तो पीपल ट्राई टू डू दिस सो मच. तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है यार हमारी सोसाइटी के अंदर. इट इज़ सो प्रॉब्लमैटिक एंड इट इज़ सो डीप रूटेड विद इन द फाइबर ऑफ आवर बींग्स कि भाई किसी भी बंदे को आगे ना जाने दो. आई थिंक इसी वजह से हम लोग पीछे रहते हैं कि हम लोग पेसिमिस्टिक भी हैं, हम लोग दूसरे लोगों को नीचे भी खींचते हैं. हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग ऊपर तक जाते रहें, अगला बंदा ना जाए. इट्स लाइक जिस तरह हम लोगों के स्कूल में होता था ना कि देयर वाज ऑलवेज दिस वन किड हु यूज्ड टू हॉग हिज नोट्स. यार मतलब नहीं, तूने मेरे नोट्स नहीं लेने, तू क्योंकि अगर मेरे से मेरे नोट्स पढ़ लेगा तो तू शायद हमारे से आगे निकल जाएगा. एंड इस पर मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ भी बनाई हैं अबाउट द बिन दाऊद एनालॉजी. कि सऊदिया में एक दफ़ा बिन दाऊद ने जो है वो बिन दाऊद के स्टोर के साथ उनके कंपेटिटर ने स्टोर खोल लिया. बिन दाऊद इज़ बेसिकली नॉर्मल कन्वीनियंट स्टोर या मतलब कैश एंड कैरी टाइप है ना. अब बिन दाऊद के साथ उनके कंपेटिटर ने स्टोर खोल लिया. इंस्टेड ऑफ बिन दाऊद के पीपल सेइंग कि यार ये लोग हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारी मार्केट ले लेंगे, इंस्टेड ऑफ देम सेइंग दैट, उन्होंने क्या किया कि उनके मैनेजर ने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि जाओ जाके इन्हें हेल्प करो इन सेटिंग अप द स्टोर. एंड जब उस मैनेजर से पूछा गया कि यार व्हाई एग्जैक्टली डिड यू हेल्प आउट योर कंपेटिटर, तो ही सेड हमारे हिस्से का रिस्क हमें मिल के रहेगा और वो हमारे से कोई भी नहीं छीन सकता.
हमारा एज मुस्लिम्स यही अकीदा होता है कि जब हम अपने माँ के पेट के अंदर होते हैं तभी हमारा रिस्क लिख दिया गया था। Exactly. रिस्क कितना होगा और रिस्क का जरिया क्या होगा, ये तो चीज़ें लिख दी गई हैं। तो फिर अगर किसी बंदे को जाके हेल्प कर भी देते हो तो व्हाई नॉट गेन अल्लाह's रिवॉर्ड? Yes. बिकॉज व्हेन यू गेन अल्लाह's रिवॉर्ड तो इट विल बी अ मच ईजियर एक्सपीरियंस फॉर यू। आप क्यों लोगों को एग्जैक्टली पुल डाउन करने की कोशिश करते हो? यार ये चीज़ ना, ये जो इशू आपने डिस्कस की इतना डीप रूटेड है ना कि यूजली जो लेग पुलर्स आर द क्लोजेस्ट पीपल टू यू। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई इस तरह के लोग भी हो सकते हैं कि मतलब दे ऑलवेज डाउन प्ले यू, क्योंकि they themselves are never used to taking risk. अगर आपके करीब भी है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी की माँ उसे रोक रही है, तो मतलब शायद शी इज अफ्रेड फॉर हर सन। इसको किस तरह केटर करते हैं? मतलब जिस तरह देखो, मेरे पर्सनली फॉर मी हाउ दिस वर्क्स वाज ना कि जब मुझे जिम वाली चीज़ रियलाइज हो गई ना कि यार इन्होंने तो लेग पुलिंग करनी ही करनी है, जो मर्जी कर लो। सो व्हाट आई डिड नेक्स्ट वाज, मैं इन लोगों को सब कुछ बताना ही छोड़ दिया। नॉट इवन माई फैमिली न्यू क्या हो रहा है। मैं अपना एयरबीएनबी का बिजनेस चुप करके बनाया। मेरे वाले साहब को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। माई फादर डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग। मैं खुद घर आके लॉन्ड्री साफ करता था, मशीन में डालता था निकाले, क्योंकि उस टाइम पे मुझे था कि नया नया बिजनेस है, अभी फिलहाल मैं क्यों अपने एक्सपेंसेस बढ़ाऊँ, लॉन्ड्री खुद घर में कर सकता हूँ। मैंने लॉन्ड्री ऐड की और फिर मैं उसको लेके जाके खुद अपने अपार्टमेंट में सेटअप करता था। और इस चीज़ का मुझे ये फ़ायदा हुआ क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब को पता चलना शुरू हुआ, हर फैमिली का अपना बिजनेस भी है बेसिकली, तो वो ये कहना शुरू हो गया कि तो उधर टाइम नहीं दे रहा था, जबकि चीज़ें वैसी ही चल रही थी। मतलब मैं छुप के कर रहा था काम में, वो उनके भी कर रहा था सारे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हाँ इसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये इधर भी टाइम लगा रहा है, तो दे वर लाइक कि नहीं ये तुम टाइम इधर दो। जब उन्हें, लेकिन अब एट दिस स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको 6-8 महीने चुप रहा हूँ कि मतलब इतनी इनकम हो गई कि अब सबको पता भी है, लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता ना। मेरे दोस्त कुछ कर सकते हैं, मतलब वही दोस्त कि यार एयरबीएनबी बहुत सैचुरेटेड है, तो किस तरह एयरबीएनबी करेगा। अब दे कम टू मी, बहुत से तो ऐसे लोग हैं, तेरे सामने ही अक्सर हुआ होगा कि लोग आते हैं कि यार हमारे साथ एयरबीएनबी करो या हमें एयरबीएनबी सिखाओ। मतलब ये चीज़ रियलाइज हमें करने की ज़रूरत है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं इट विल पे आउट एट द एंड ऑफ द डे। थोड़ा सा टाइम लेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो हम पाकिस्तानियों में एक चीज़ बहुत कमी है, एक चीज़ की डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जिम में भी यही होता है, आप एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनाते, तुझे ही पता है मुझे ही पता है, यू डोंट मेक अ बॉडी इन सिंगल डे। इट्स कंटिन्यूस एफर्ट, रोज वही जिस तरह मैं बता रहा था, उबली मुर्गी खाना रोज 6 महीने के लिए खाना, यूर एसेंशियली ईटिंग लाइक अ डॉग। मतलब कुत्ते शायद तुमसे बेहतर खाते हो रोज, फिर उन्हें बाहर से कुछ अच्छा मिल जाता होगा, लेकिन यूर ईटिंग लाइक अ डॉग, क्योंकि आपको पता है आपके गोल्स क्या हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड योर गोल्स। तो मतलब अपना मेंटल रेजिलियंस इतनी होनी चाहिए आपके पास कि इट इजंट अफेक्टेड बाय अदर पीपल। इस पे तरह के ओपिनियन है कि मतलब अपने आप को हाउ डू यू प्रिजर्व योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल। यार इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली बी वेलिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि मैं पर्सनली भी खुद आई डोंट टेल पीपल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ अनटिल इट्स एब्सोल्युटली डन। तब तक मैं नहीं बताऊंगा। लाइक व्हेन आई बिल्ड दिस ऑफिस, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई ये ऑफिस बन गया या ऑफिस बना रहा हूँ मैं। नो वन न्यू, नो वन फ्रॉम माई फ्रेंड्स न्यू। जिस दिन बन गया था उस दिन बस मैंने उन्हें बुला लिया कि यार आज मैंने बना लिया, ठीक है देख लो आके। तो कहने का मकसद है कि यार देखो, ओवर शेयरिंग इन पर्सनल डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू यू। किसी का भी नहीं पता होता कि यार कौन बंदा आपके लिए अच्छा चाहता है और कौन बुरा चाहता है। आप बेसिकली बता अपनी ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन लोगों को इस वजह से दे रहे होते हो क्योंकि यू आर बेसिकली गेनिंग अ लॉट ऑफ डोपामीन फ्रॉम इट। आप अपने गोल्स के बारे में बता के वैलिडेशन और डोपामीन गेन करते हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग आउट देयर एंड ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स एंड गेनिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम दैट। व्हाई डोंट यू डू दैट? मतलब क्यों लोगों को बता के अपनी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा ड्रेन कर रहे हो? लोगों को बताने से लिटरली कभी भी व्हेन यू आर अबाउट टू डू समथिंग नहीं फ़ायदा होता। आई पर्सनली सीन इन माई लाइफ कि मैंने जब लोगों को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया तो इट हैड वेरी नेगेटिव आउटकम्स। यानी कि चीज़ें रुक जाती थी यार, मतलब रास्ते में, मतलब होने वाली है चीज़, ठीक है, मतलब अब ऑलमोस्ट डन, बट ड्यू टू सम मिस्टीरियस रीज़न कुछ ना कुछ मसलियत बन जाती थी और काम ख़राब हो जाता था। तो आई वुड लाइक जेन्युइनली अर्ज लाइक एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि यार कभी भी अपनी लाइफ में अननेसेसरी डिटेल्स लोगों को ना बताओ। And this is something which I've learned the hard way, and I'm sure you've learned it the hard way as well. 100%, तो unless it's absolutely done, unless वो होगी है, और जब हो भी गई है तब भी इंटीमेट डिटेल्स कभी भी किसी को ना बताओ कि हाउ मच यूर मेकिंग, एग्जैक्ट फिगर्स ना हो, हाँ, व्हाट यू आर अबाउट टू डू, कौन से बिजनेस में अब तुम डाइवर्सिफाई करने लगे हो। दैट इज नेवर अ गुड आइडिया, दैट इज नेवर अ गुड आइडिया। तो खैर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है विच आई वांट टू आस्क यू। 100%। In your opinion, what's one thing that
most people get wrong about success or winning? Bro, मेरी नज़रों में ना जो लोग सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक है, they think winning is copying winners. That isn't the story. Winning is writing your own story. देखो, आप एक बंदे की रूटीन चेक करते हो जो थोड़ा सक्सेसफुल है इन लाइफ. वो सुबह उठता है 5 बजे और आप कहते हो नहीं कि सुबह 5 बजे उठता है, मैं की बात हो रही है. 5 बजे उठता है ना, हाँ. तो मैं 5 बजे उठ के मैं इसी तरह पैसे कमा लूंगा. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. बेसिकली जो लॉजिक बिहाइंड दिस इज डूइंग द हार्ड स्टफ, मतलब द टफ डिसीजन. जिस तरह सुबह उठना मुश्किल है, रोज जिम जाना मुश्किल है, आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो इन एक्शन से कि आप रोज एक एक चीज कर रहे हो जो आपको तंग कर रही है. आप उस तरह वो हैबिट्स बिल्ड करते हो जिसके लिए बेसिकली टू ग्रो इन लाइफ यू नीड टू डू स्टफ यू हैव नेवर डन बिफोर. Definitely. नेवर उसको कस्टम कर लो अपने आप को कि यू नीड टू डू स्टफ जो पहले मैंने कभी नहीं किया फॉर ग्रोथ. वो 10x ग्रोथ देगा. हम लोग बेसिकली ना, जैसा फॉर एग्जांपल भाई 5 टास्क हैं दिन में, एक ऐसी टास्क है जो हमने कभी नहीं की और बाकी 4 है जो हम रोज करते हैं. हम कहते हैं कि ये मुश्किल होगी, इसको रख देते हैं फिलहाल, बाकी 4 कर लेते हैं. हम कभी इस चीज़ पे आते ही नहीं, जबकि हमें सीक्रेटली हमें ही पता है अंदर से अगर हमने जिस दिन ये कर ली हमें 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा इस चीज़ से. तो विनिंग इस चीज़ से आती है कि डूइंग दिस टास्क, जब भी मौका मिले ये टास्क करो. बिजनेस में भी यही है. अगर एक बिजनेस स्केल तब तक के लिए नहीं करता, जिस तरह बिजनेस में भी टास्क हैं, एक टास्क होगी जो बहुत मुश्किल होगी, जो आपके लिए भी नहीं होगी. एज अ बिजनेस मैन वो आप कहोगे कि हाँ ये चीज़ मैंने कभी नहीं की. फॉर एग्जाम्पल किसी नई प्लेटफॉर्म पे जाना है, किसी नई चीज़ पे मार्केट करना है और आपको पता है वो आपको 10x रिटर्न देगी. आप नहीं करते हो, आप बाकी 4 टास्क करते रहते हो, उसी अपनी बिजनेस को रिफाइन करते रहते हो. यू विल नेवर ग्रो. विनिंग कम्स फ्रॉम गोइंग एंड डूइंग द इम्पॉसिबल एवरी सिंगल डे. On that topic, do you believe in morning routines or do you think they're a hoax? यार मैं सच बताऊं, नहीं, आई डोंट. You don't? आई डोंट. अच्छा. आई डोंट. ऐसे देखो, मैं जिस तरह भी ये बात की ना, इट्स अबाउट डूइंग, इससे आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो. लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था. हाउ आई बिल्ड डिसिप्लिन वाज बाय जिम और डाइट. मतलब मैं पहले 6 महीने जब when my journey started, जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के राउट पे आया, तो मैंने शुरू ही सिर्फ जिम से किया था. फॉर 6 months स्ट्रेट मैं अपने कमरे में बंद था, कंप्लीट आइसोलेशन. मैंने सिर्फ जिम डाइट के अलावा कुछ भी नहीं किया. 6 महीने बाद अगले मैं बेसिकली अराउंड 8 से 9 मंथ में आइसोलेशन में रहा. मैं किसी दोस्त से नहीं मिला था, मेरे सारे किसी से कॉन्टैक्ट नहीं था. जस्ट कट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एवरीवन. उस पर बाद में आएंगे. लेकिन उसमें ना जो 6 महीने में सिर्फ जिम किया. उसके बाद मैं बिजनेस पे आया. आई बिल्ड माई रूटीन, माई डिसिप्लिन. के मतलब मुझे एक रोज़ चीज़ जो मुझे जिस दिन मेरा दिल नहीं भी कर रहा होगा ना जिम जाना है, मैं उस दिन में जिम जाता था. जिस दिन बंदा बीमार है, इट नेचुरली बिकम्स लाइक ब्रीदिंग टू यू. कि मतलब जिस तरह सांस लेने के बराबर. जिस तरह मैं अभी हम कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे कि यार हम जिम नहीं जा रहे रमज़ान के आखिरी अशरे में और ईद आ गई. अब मतलब रातों को नींद नहीं आ रही, इतनी टेंशन हो रही है. मैं तो ये डिस्कस कर रहा था बात. यही मैं बात कर रहा हूँ कि इट बिकम्स सो नेचुरल टू मी. जिस तरह अगर सुबह उठ के मुझे काम करना है ना, तो मैं अपनी डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा कि रोज़ मुझे काम करना है और मैं रोज़ थोड़ा सा अपना चैलेंज बढ़ाता रहूँ ऑन टू द न्यू थिंग, ऑन टू अ बेटर थिंग, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरह ग्रो करूँ. ये नहीं कि मैं बस एक ही रिपीटेटिव टास्क करता रहूँ. स्टेसिस कि मतलब मैं एक ही चीज़ रोज़ कर रहा हूँ, किल्स ग्रोथ. मतलब उसको थोड़ा थोड़ा, जिस तरह जिम की प्रोग्रेस लेते हैं. जिम की प्रोग्रेस काम किस तरह करती है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आप रोज़ जिम जाके एक ही वजन नहीं उठा रहे होते. आपका गोल होता है आप हर हफ्ते जाके 2-2.5 किलो वजन ज़्यादा उठाओगे. दैट इज़ व्हाट प्रोग्रेसिव ओवरलोड. और वही अच्छा डोपामाइन है कि बेसिकली यू आर डूइंग चैलेंजिंग स्टफ. ये भी नहीं कि आप पहले दिन जाओ मैंने 40 के डंबल उठाने, स्टार्ट स्लो और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप ऑन इट. हर चीज़ में यही चीज़ अप्लाई करती है. तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर? यार मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक कि मॉर्निंग रूटीन्स डेफिनेटली हैव बीन अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ माई लाइफ पर्सनली. बट मैं उस चीज़ में भी इस तरह बिलीव करता हूँ कि यार मेरी मॉर्निंग रूटीन्स में भी जो टास्क हैं दे आर देयर फॉर अ रीज़न एंड मैं उनके अंदर भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता रहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 थिंग्स जो मैं हमेशा सुबह के टाइम पे करता हूँ. मैं हमेशा आउटडोर्स जाऊँगा. जैसे ही एज सून एज आई वेक अप आई विल गो आउटडोर्स, आई विल गेट सम मॉर्निंग सनलाइट. क्योंकि मुझे पता है वो एक नहीं होता बंदा जब सुबह उठता है तो बंदे की आंखें थोड़ी सी ग्रॉगी सी हुई होती हैं एंड यू आर नॉट रियली सही तरीके से अवोकन. हाँ, तो मैं इस तरह करके बाहर चला जाता हूँ एंड मेरे 2 टास्क हैं जो मैंने करने ही करने हैं. एक, आई हैव टू मेडिटेट. आई मेडिटेट एज सून एज आई वेक अप. क्योंकि मुझे पता है कि यार देखो जब मैंने एक दफ़ा अपना फ़ोन उठा लिया ना तो इट्स गोइंग टू बी मैसेजेस, इट्स गोइंग टू बी कॉल्स. किसी को पैसे नहीं रिसीव हुए, किसी के जी पैसे चेक रुक गया है, किसी का कोई ना कोई XYZ प्रॉब्लम बन गया है, ये बंदा आज नहीं आ सकता, ये बंदा परसों से आएगा. मतलब कोई ना कोई मसला बना हुआ होगा. तो आई नो कि यार मैं अगर सुबह उठते साथ ही अपने आप को वो इम्पल्स देने लग जाऊंगे तो इट्स गोइंग टू स्ट्रेस मी आउट फॉर नो रीजन. माई डे इज कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मसला आ रहा होता है एंड आई एम देयर टू वेदर इट बाय द वे. बट
मैंने शुरू में इन द मॉर्निंग अपनी वो मेंटल रेजिलियंस बनानी है, सो दैट आई एम सेंटर्ड, आई एम रेडी टू टेक ऑन द डे. इस वजह से आई मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स. दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट हैज़ हेल्प मी ग्रो एंड बिकम अ बेटर पर्सन. एंड आई थिंक कि जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो इट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ लेयर ऑफ इम्पल्स कंट्रोल इन यू, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यू एक्चुअली स्ट्राइविंग ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. अगर आप में इम्पल्स कंट्रोल है, अगर आप अपने आप को सर्टन कामों से रोक सकते हो, तभी आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो गए. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी शाइनी, ठीक है, हाँ, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी शाइनी टू यू और आप कहते हो कि यार मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, बट यू नो इट्स बैड फॉर यू, तो अनलेस आपके पास इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट. हम लोग इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं हाउ मेनी बिजनेसेस वी कैन गेट इनटू, बट अगर हम लोग सेंटर्ड ना हो, तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली वो 4-5 बिजनेसेस स्टार्ट कर देंगे, विल एंड अप फेलिंग इन एवरी सिंगल वन ऑफ देम, बिकॉज आवर अटेंशन विल बी टू डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मेडिटेशन इज समथिंग व्हिच हेल्प्स मी स्टे सेंटर्ड, तो वो तो मैं हमेशा सुबह करता हूँ. और दूसरी चीज़ इज, मैंने एक दफ़ा एक किताब पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड. एंड उसके अंदर उसने एक प्रिंसिपल समझाया हुआ था, एक अपनी ऑल्टर ईगो बिल्ड करने का, कि वेर यू बेसिकली राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, मॉनिटरली, वॉट एवर इट इज़. आपने वो सारे के सारे गोल्स ऐसे लिखे हुए हैं एज इफ़ यू ऑलरेडी पोजेस देम, यानी कि आई मेक XYZ, आई हैव XYZ. वो जो टैंक टॉप वाला बॉय था वो भी यही बोल रहा था, ठीक है. तो वो मैंने एक लिखी हुई लिस्ट सही है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 or 4 पेजेस लॉन्ग. पहले एक छोटा रजिस्टर था, अब बड़ा वाला है, तो इस वजह 3-4 पेज पे पूरा आ जाता है. तो आई रीड दैट लिस्ट एवरी सिंगल मॉर्निंग टू बेसिकली टेल माई सेल्फ हु आई एम, बिकॉज अक्सर हम लोग ज़िंदगी की हलचल में भूल जाते हैं हम लोग एग्जैक्टली हैं कौन. Exactly. तो वो एक आइडेंटिटी लाने के लिए, वो एक मैक्रो फोकस लाने के लिए, आई हैव टू रीड, आई हैव टू मेक दैट पार्ट ऑफ माई डे जस्ट बिलोंग टू मी, नॉट टू एनी वन एल्स. बिकॉज एज सुन एज आई वेक अप एंड मैं अपना फ़ोन उठा लूँगा, तो माई एनर्जी इज गोइंग टू गो टू अदर पीपल, नॉट टूवर्ड्स मी. तो आई चूज टू सप्लाई एनर्जी टू माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. तो इस वजह से मैं मॉर्निंग रूटीन्स यार अच्छा करता हूँ. अब देख, लेकिन स्टेसिस, एज फार एज स्टेसिस इज कंसर्न, अब मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन के अंदर भी चीज़ों को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करता रहता हूँ. जिस तरह आई एड लिटिल बिट ऑफ मोर मिनट्स इनटू माय मेडिटेशन. 12 मिनट कर लूँगा एक दिन, ठीक है, 13 मिनट कर लूँगा एक दिन. आई स्टार्टेड फ्रॉम 5 मिनट्स. हाउ डू यू मेडिटेट बाय द वे? बढ़िया यार, मैं आई यूज दिस ऐप कॉल्ड मेडिटो, ठीक है, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे. तो मेडिटो पे मैं इसी तरह करके खोलता हूँ और उसके अंदर डेली आ रहा होता है, तो आप डेली मेडिटेशन के ऊपर क्लिक कर देते हो. यू जस्ट सिट देयर फॉर 10 मिनट्स, आप अपने ब्रेथ्स को काउंट कर रहे होते हो, एंड यू बेसिकली ट्राई टू गेट योर अटेंशन एंड कीप इट सेंटर्ड टूवर्ड्स योर ब्रेथ. क्योंकि जब हम विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन बैठे हुए ना एक जगह पे, तो मोस्टली हमें 50,000 किस्म के और ख्याल आ रहे होंगे. तो ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन यू ऑलवेज गेट प्रॉम्प्टेड टू गेट योर फोकस बैक ऑन टू योर ब्रेथ एंड इग्नोर एनी एंड एवरी काइंड्स ऑफ वॉन्डरिंग थॉट्स. एंड दिस इज हाउ इट ट्रांसलेट्स टू रियल लाइफ. एक दफ़ा आप मेडिटेट करते रहोगे, तो लेट्स से यूर समवन हु इज वेरी फैट, सही है, यू ह्यूज, सही है, मैसिव, हाँ. तो मतलब अगर आप इतने ह्यूज हो, you're basically trying to get yourself to stop eating things which are bad for you, यानी कि मतलब desserts and complex carbohydrates of bad kinds and everything along those lines, trans fats, everything. तो जब आप मेडिटेट करते होगे and you're centered, because आप constantly अपने माइंड को ट्रेन करते हो to focus on your breath and not on the wandering thoughts, तो जब आपके सामने वो पीस ऑफ केक पड़ा हुआ होगा, वो पिज्ज़ा पड़ा हुआ होगा, तो यू विल बी एबल टू गेट योर सेल्फ टू स्टॉप फ्रॉम ईटिंग दैट, फोकस मोर ऑन द टास्क एट हैंड विच इज़ योर डाइट इन दैट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. तो इस वजह से इन माय ओपिनियन मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट. यू डोंट बिलीव इन इट? यार मैं भी यही इसी चीज़ पे आने लगा था. मेरी असल में मैं थोड़ा सा उल्टा हूँ आप लोगों से. अच्छा, आई एम मोर ऑफ नाइट पर्सन फॉर सम रीजन. मेरी प्रोडक्टिव, तो मुझे रमज़ान में शायद मुझे देखा ही था, मेरी प्रोडक्टिविटी शुरू ही दोपहर 3 बजे के बाद होती है, इज व्हेन आई एम इन माय जोन. तो मैं मेडिटेट करता हूँ रात को सोने से पहले, कि जस्ट क्लियर एवरीथिंग आउट. ये मेरा वक्त है, थोड़ी सी किताब पढ़ी, कोई एक अच्छी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कुछ सीख लिया, एंड देन इट मी गॉन टू बेड. और वो भी काफ़ी लेट. और मैं सुबह उठता हूँ जिस तरह, और सुबह उठते साथ ही मेरा ये होता है कि ओह मैं रात को प्लान डिसाइड कर लेता हूँ सुबह मैंने क्या उठ कर करना है, और जस्ट आई एम इनटू माय डे. सुबह उठते साथ ही बस काम शुरू, और फिर रात को आई टेक अ ब्रीदर, जिम जाता हूँ, रात को ही जिम जाता हूँ, और रात को एक्चुअली काफ़ी लेट जिम जाता हूँ, 12, 12:30, 11 तक जिम में कोई हो भी ना, सुकून हो. और उसके बाद अपना दिन इस तरह ख़त्म करता हूँ. मतलब वी डू एसेंशियली द सेम थिंग्स, लेकिन हम टाइमलाइन थोड़ी सी रिवर्स है, और इट वर्क्स फॉर मी. यार आई थिंक देखो, पर्सनालिटी टाइप्स तो हर किसी की डिफरेंट होती है. योर पर्सनालिटी टाइप एंड माई पर्सनालिटी टाइप इज क्वाइट डिफरेंट. मतलब सिमिलैरिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, सिमिलैरिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, बट डिफरेंसेस भी बहुत हैं. अब मैं पर्सनली
ऑलवेज बिन समवन के मतलब जो ज़रा ज़्यादा प्रेफर करता है सुबह के टाइम पे फंक्शन करना ना, बिकॉज लाइक डॉक्टर हो ना। तो मैं सुबह के टाइम पे, मैं ट्रेन भी सुबह के टाइम पे करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम भी जल्दी शाम को ख़त्म कर लूँ ताकि मैं रात को जल्दी सो जाऊँ, बिकॉज आई डोंट हैव द लग्जरी ऑफ गोइंग टू द जिम एट 1 AM अनफॉर्चुनेटली। ओह, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं जल्दी अपना काम वगैरह सारा ख़त्म कर लूँ। एंड इन माई ओपिनियन देखो, ये तो हमारा रिलीजन भी हमें बताता है कि भाई इट इज़ बेटर टू Yes. वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, यानी ये रात सोने के लिए बनाई हुई है, Definitely. इसी आराम तरह करने के लिए बनाई हुई है, और सुबह काम करने के लिए बनाई हुई है। और एक और हदीस भी थी, एंड आई एम पैराफ्रेजिंग राइट नाउ, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वर्डिंग उस हदीस की, बट मफहूम उसका ये था कि जो लोग सुबह के टाइम पे काम करते हैं उनको ब्लेस कर दें, या कुछ इस तरह करके ना, कि मतलब देयर इज़ ब्लेसिंग्स टू दोज पीपल हु वर्क इन द मॉर्निंग। तो इन माई ओपिनियन आई ऑलवेज बिन समवन के जो एक मॉर्निंग पर्सन रहा है। और मेरे अबू जब मैं छोटा होता था तो मुझे इस चीज़ पे मेरी बड़ी बेइज्जतियाँ हुआ करती थी कि मैं लेट उठता हूँ, तो वो उन्होंने जो है ना वो Instill कर दिया तुम्हारे इंस्टिल कर दिया, बड़ा सिवियर किस्म का बहुत। इंस्टिल कर दिया, यानी Yes. बाय फोर्स ही, बाय डिज़ाइन वो चीज़ हो गई है। तो ऑन दैट टॉपिक डू यू थिंक कि मतलब is obsession a requirement for success, or is balance possible? Bro, 100%. You need to be obsessed to achieve something great in life. You need to be obsessed, all in, tunnel vision. देखो, obsession creates life. मतलब जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, बिजनेस बिल्ड करना है, कुछ करना है, उसको इस तरह देखो, यू आर अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, कि यू आर ऑब्सेस्ड कि उसमें न्यूट्रिशन परफेक्ट जा रही है, जो उस बच्चे को आप खिला रहे हो, उसकी अपब्रिंगिंग, उसको जो आप सिखा रहे हो, इट इज़ perfectly on point. तो you need to be obsessed at least उस point तक कि जब तक के लिए वो चीज़ अपने आप पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती, ऑटोमेट नहीं हो जाती। You need to be obsessed. You need to be into the nitty gritties. यार चंद लोग तो ऐसे भी हैं कि वो लोग पूरी जिंदगी obsessed रहते हैं. It is their purpose of living. यार इसकी बहुत मज़े की मिसाल है, सॉरी मैं नाम बुचर कर रहा हूँ, हायाओ मियाज़ाकी, the founder of Ghibli Studios. Bro, अभी he is in his 70s I assume. 70s में he makes art by hand. मतलब जो उसकी सारी जो स्टूडियो गिब्ली की जितनी मूवीज हैं, they are all made by hand. वो अभी तक इस प्रैक्टिस को मेंटेन करता है, और वो खुद बैठ के वो ड्रॉ करता है वो चीज़ें। अभी तक आर्ट सेल का अभी तक हैंड ड्रॉन है, और वो खुद अभी तक ड्रॉ करता है दफ्तर में अकेले बैठ के ओवर टाइम काम करके। यहाँ तक कि ब्रो ऑब्सेस्ड टू द पॉइंट कि ही बिलीव्स कि जो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी भी अपनी पर्सनालिटीज़ हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम शुड बी डिफरेंट। उनकी अपनी इमोशंस होंगे, अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होंगी। हेंस स्टूडियो गिब्ली इतना मशहूर क्यों है कि दैट ऑब्सेशन गेव लाइफ टू इट, कि अब उसके पीछे पूरा एक आर्ट स्टाइल नेम्ड है। और बाय द वे ही इज द ओनली गाय जो कहता है कि मैं रिटायर कर रहा हूँ, बस मेरी बस है, लेकिन हर बार ही वापस आ जाता है। अभी तक ही स्टिल एक्टिव बाय द वे। अच्छा, तो ऑब्सेशन इज 100% नेसेसरी ब्रो। उसका मतलब कोई इसका वो नहीं है। टू अचीव एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ देयर इज नो बैलेंस अनफॉर्चुनेटली। यार आई डू बिलीव कि मतलब देयर इज ट्रूथ टू दैट आर्ग्यूमेंट, बट मेरे ओपिनियन में मैंने हमेशा अपनी लाइफ को ना इस तरह व्यू किया है इन टर्म्स ऑफ लेयर्स, यानी कि जिस तरह प्याज की लेयर्स होती है, आप एक छिलका उतारो तो एक और मतलब पूरा प्याज निकल आता है बीच में से, एक और छिलका उतारो पूरा प्याज निकल आता है बीच में से। तो यू बेसिकली इन माय ओपिनियन नीड टू बी व्यूइंग लाइफ फ्रॉम द लेंस ऑफ पर्पस लेयर्स, यानी कि आपकी लाइफ में इस वक्त एक मैक्रो गोल है जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, जिस पे 80% ऑफ योर एफर्ट्स गो इनटू। जैसे फॉर एग्जांपल इफ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन लाइफ इज मनी, ठीक है, तो फिर योर 80% ऑफ एफर्ट्स शुड गो इनटू बिल्डिंग अ बिजनेस, 100%, ऑप्टिमाइजिंग योर सिस्टम्स, इंश्योरिंग कि आपके सारे के सारे प्रोसेसेस अच्छे तरीके से वर्क करें, एंड यूर प्राइम्ड टू मेक श्योर यू मेक इवन मोर मनी। बट इवेंचुअली जब आप अपने बिजनेस को इस पॉइंट तक ले आए हो जहाँ पे यू थिंक यार हाँ ये ऑटोमेट हो सकता है, तो एट दैट पॉइंट व्हाट्स गोइंग टू नेचुरली एंड अप हैपनिंग व्हिच इज द जर्नी फॉर एवरी मैन, कि वो एक दफा एक पर्पस लेयर को अचीव कर लेता है, देन ही हैज टू अचीव समथिंग एल्स एंड पुट हिज एफर्ट्स इनटू समथिंग एल्स। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। माय पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन वेरी फोकस्ड ऑन बिजनेस। इस वजह से मैंने अपनी फिटनेस को जो है वो मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम के ऊपर चलाया है, ठीक है। आई हैवंट पुट इन 80% of my efforts into it, but there have been times of my life where I have put 80% of my efforts, if not 100% of my efforts into my fitness. So in my opinion, you should be viewing life from the lens of purpose layers. आप एक चीज को अचीव करो, एक चीज को अपना मैक्रो गोल बनाओ, which is right now most concerning to you. अब एक अगर फॉर एग्जाम्पल एक मोटा बंदा देख रहा है, जो मोटा भी है, ब्रोक भी है, अनअट्रैक्टिव भी है,
and he has every other kind of misfortune going towards him, ठीक है? So what that guy should make his purpose layer should be कि lose weight as much as possible, as soon as possible, start going to the gym as soon as possible, and make sure कि आपकी सारी की सारी attention उसके ऊपर जा रही है, because उस आदत का जो है वो उस टाइम पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज यू एंड आई बोथ नो कि इट ऑल स्टार्ट्स इन द जिम. 100%. तो उसकी he shouldn't be trying to get into the nitty-gritties of how to balance his business and his fitness and his looks maxing per se. He should be trying to get into the gym, build the habit, form discipline, एंड इंश्योर कि उस चीज़ को वो पहले अच्छे तरीके से सेंटर डाउन करे, उस चीज़ को अच्छे तरीके से नेल करे, और उसके बाद ही मूव्स ऑन टू समथिंग एल्स. फर्स्ट अचीव दैट पर्पस लेयर एंड देन गेट ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ऑटोमेट दैट फर्स्ट. उसको एक ऐसे लेवल के ऊपर लेके आओ, बना लो उस चीज को. जैसे जिम में फॉर एग्जांपल उसे हैबिट बना लो. इस पे मेरा एक और बिलीफ ही है कि आई बिलीव कि बंदे के पास ना 3 चीजें होनी चाहिए जिस पे वो साथ साथ काम करेगा. मतलब एक फोकस एक टाइम पे एक चीज होगा, जस्ट लाइक यू सेड, लेकिन वो 3 चीजें साथ होंगी. एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए बंदे के पास, यस फॉर श्योर. एक होना चाहिए फिजिकल किस तरह दिखता है वो, और एक होना चाहिए उसका फाइनेंसेस. वो देखो अगर वो तीनों में से एक चीज पे काम कर रहा है एट द टाइम, और इफ इट स्टॉप्स, जिंदगी में यार सेटबैक्स आते ही आते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और यू नीड अ पिलर टू रिलाई ऑन. बेसिकली यू आर बीइंग, आप एक डिप्रेसिव लूप में ना चले जाओ कि हाँ मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे. यू नीड 2 अदर थिंग्स जिस पे आप साथ साथ काम कर रहे हो, मतलब आपकी प्रायोरिटी ना हो, लेकिन यू नो यू हैव अ फॉल बैक कि मतलब मैं एकदम से बस सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, मुझे अपनी बॉडी पे काम करना हूँ तब तक के लिए ये सेटबैक आ रहा है, ये टाइम इस चीज़ पे साथ साथ मैं इस पे काम करूंगा, साथ साथ अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर देता हूँ, मैं इस चीज़ पे टाइम कम देना शुरू कर दूंगा जस्ट टू सेव हिमसेल्फ. ये मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि मतलब जिस तरह यार अगर देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा एयरबीएनबी बिजनेस है ना, मैं कहता हूँ मैं हर 2 महीने बाद एक्सपैंड करता हूँ. दो बीच में जो 2 महीना स्टेसिस का पीरियड होता है ना, उसमें मेरा मकसद गोल ये हो जाता है कि अब ना मैं एक्टिवली किसी प्रॉपर्टीज़ के लिए देख रहा हूँ, ना मैं सर्च कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं है करने को, मतलब सिर्फ अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ मैं इस वक्त. तो मैं उस 2 महीने में मेरा फोकस होगा कि मैं डाइट परफेक्ट कर लूँ और मैं उस पर फोकस करूँ, ताकि मेरे पास कुछ करने को हो, सो आई डोंट गो इनसेन. Do you think that's important? Like having something to do at all times to prevent insanity? नहीं. Do you think कि बंदा relaxed रह सकता है? रह सकता है. Because in my opinion, मेरे ख्याल में I've seen this pattern in like all the men in my family. कि हम लोग अगर फारिग बैठने लग जाए ना, हमारे दिमाग फारिग होने लग जाए. बिल्कुल. Like मेरे साथ इस तरह होता है, अगर मैं जिस तरह ये अभी पीछे 3 दिन ईद के गुजरे हैं, I decided to take those 3 days off completely from work. The reason for that was because I went really hard this Ramzan. हाँ, मुझे पता है, मतलब we went really hard. Yes, exactly. बहुत काम थे. तो रमज़ान में because we worked so hard, तो इस वजह से मेरी प्रायोरिटी थी कि यार मैं ये ईद अपनी फैमिली को दूँ, ठीक है, इन दिनों के अंदर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, एंड आई मेक श्योर कि आई रियली डू स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड, एंड ताकि आई गेट रेडी एंड रिचार्ज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. तो वो जब ईद के दिन गुजर गए ना, तो अब जब वो ईद के दिन गुजर रहे थे, अब उन 3 दिनों के दौरान when I didn't have anything special to do or anything to work on, I started going insane by the 3rd day. कि भाई I need something to do right now. मतलब I need to start working on myself again. तो जैसे वो ईद के बाद पहला दिन हम लोग ऑफिस में आए, उसके बाद I was like यार अच्छा चलो ठीक है, अब जरा महसूस होना शुरू हुआ है कि I feel normal, ठीक है, I have something to do, there are problems out there which need fixing. मैं तो भाई बिल्कुल भी फारिग टाइम नहीं गुजार सकता. I just need यार, मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि आई डिजर्व दैट टाइम. Exactly. अगर आपने 4-5 महीने काम किया भी है ना, और उसके बाद यू डिसाइड टू टेक अ वीक ऑफ और 2 weeks ऑफ where you just disconnect and spend your time in solitude, that is completely justified by the way. मैं इसी चीज़ से and वो होना भी चाहिए ताकि आप अपने आप को रिकलेक्ट कर सको, बर्नआउट से बच सको. बट अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार जो आपका वर्किंग का पीरियड है 4-5 महीने जिसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें भी आपको पॉइंट्स ऑफ रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, where you're just kicking your feet about in the air and enjoying your time, तो I wouldn't necessarily say कि you should be trying to enjoy your time. You shouldn't be measuring happiness as a metric to your success. You should be making sure कि यार जो भी uncomfortable tasks हैं, they're getting out of the way as soon as possible every single morning. First come basis पे भाई आप पहले ये मुश्किल tasks को हटाओ, 100%. उसके बाद move to the comfortable things, and इस तरीके से work blocks को लेके चलो, and then when you deserve it, तब do take some time. Take a breather, bro. Yes. इस रिलैक्सेशन का मेरा यही पॉइंट था कि आफ्टर फॉर एग्जांपल 4 months ऑफ हार्ड वर्क, अब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी वुड बी टेकिंग अ हिट. तुम नहीं रियलाइज करोगे, Yes, definitely. इट विल बी टेकिंग अ हिट. यू नीड दैट टाइम ऑफ फॉर अ वीक, लेकिन इसको इस तरह देखो कि इट्स अ रिवॉर्ड
इसको एज ए रिवॉर्ड सिस्टम रखो कि मतलब 4 महीने तुम लगातार काम किया है, तुमने उसका रिवॉर्ड दिया। बेसिकली जिस तरह तुम पूरा महीना काम करते हो, तुम्हें एक सैलरी मिलती है महीने के एंड पे, उसी तरह इसको समझो और रिवॉर्ड योरसेल्फ दिस। ये नहीं है कि भाई मैंने आज बहुत काम किया, मैं छुट्टी कर रहा हूँ। क्यों भाई, तुमने क्या आज क्या पढ़ लिया है, तो तुम्हारा नाम खबरों में नहीं आ रहा, तो कुछ है नहीं अभी भी, तुम वैसे के वैसे ही हो, तुम एक दिन जिम गए हो। इस तरह नहीं होता। जिस तरह यार देखो ना, जिस तरह इनिशियली जो जिम बॉयज़ का भी मसला है, जो नए नए जिम आते हैं, वो पहले ही फिक्सिएटेड होते हैं ऑन वीकेंड। हाँ, वीकेंड पे चीट डे होगा, और वो चीट डे पे इतना गंद करते हैं ना कि वो अपने एक हफ्ते की मेहनत के बजाय पिछले दो हफ्ते उड़ा देते हैं। जो प्रोग्रेस की होगी सारी की सारी उड़ा देंगे एक वीकेंड पे। एग्जैक्टली। तो मतलब उस रिवॉर्ड, यू नीड टू अर्न दैट रिवॉर्ड। बस ये नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड के अब आ गया तो जितना करो ना करो, नहीं, यू नीड टू अर्न इट। और एक और दूसरी चीज़ ये कि पीपल मोस्टली स्पेंड देयर वीकेंड्स इन द रॉन्ग वे, बिकॉज उन्हें लगता है कि यार उन्होंने अपनी एनर्जी रिकलेक्ट करनी है। यस, बट कहाँ पे आप ये एनर्जी एग्जैक्टली रिकलेक्ट हो रही है? जब आप नेटफ्लिक्स पे एक्सट्रीमली हाइपर स्टिमुलेटिंग किस्म के शोज देख रहे हो, यू आर नॉट रिकलेक्टिंग, वेरी एंगेज्ड। आप इस टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। बिकॉज मेरे साथ भी पर्सनली इस तरह होता है कि व्हेन आई एम वेरी एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स माय बिजनेस, मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। तो इस वजह से मैं जब हॉलीडेज होते हैं, जब संडेज होते हैं, जब इस तरीके से मैं ऑफ लेता हूँ, एंड आई एम एक्चुअली द पर्पस बिहाइंड दैट हॉलीडे इज टू रिकलेक्ट एनर्जी, मैं वो वाला टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। एंड आई फील लाइक मेरी एनर्जी रिकलेक्ट तब होती है जब आई गिव टू माई फैमिली। एग्जैक्टली, आई गिव ग्रेटिट्यूड टू माई फैमिली, कॉम्प्लीमेंट्स टू माई फैमिली, गिफ्ट्स टू माई फैमिली। तब मेरी एनर्जी रिकलेक्ट होती है, एंड आई फील लाइक अ न्यू मैन गोइंग इनटू दिस नेक्स्ट वर्क ब्लॉक। इस पे मैं आता हूँ यार। मैंने रियलाइज किया कि ना, हम जो मर्द होते हैं ना, यूजुअली हम वी डोंट लिव लाइफ फॉर आवरसेल्फ बेसिकली। we never do. हमारा जनरली प्रोवाइडर माइंडसेट होता है। हम वी लिव लाइफ फॉर अदर्स, अपनी माँ अपनी बहनों के लिए। तो हम बेहतर भी इसी तरह फील करते हैं कि जो हम मेहनत करें, जो उसका फल है वो हम उनको दे रहे हैं कि हम खुद खा रहे हैं उस फल को। पहली प्रायोरिटी ही वो लोग होते हैं, और हमें उससे बहुत खुशी मिलती है। इस तरह ईद, यार ईद पे आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईद, कि वहाँ सबको ईदियाँ दूंगा। मतलब मैंने पैसे सेव करके रखे हुए अलग, कि सबको ईदियाँ देनी है। और आई जेन्युइनली फेल्ट हैप्पी कि मुझे यही करना था। मतलब हम करते ही काम दूसरों के लिए। यस, एग्जैक्टली। तो मर्द की फितरत में यार ये है ना कि मतलब उसका काम ही बेसिकली ये है कि यार वो बस बाहर जाए, ठीक है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिसकंसेप्शंस हैं। मॉडर्न डे सोसाइटी के अंदर इस तरह फील किया जाता है कि मे बी यू नो इट्स ऑल अबाउट 50-50 एंड मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वली contributing to the household. मेरे ओपिनियन में that's not the case. 100% People might say that this is controversial advice and this is something which is very wrong to say, but in my personal opinion, मुझे इस तरह फील होता है कि I should be the provider. 100%. I should be taking care of 100% of the household and I wouldn't burden my woman to do the same. कि यार मतलब हम मर्दों का बेसिकली हमारी फितरत में ये है, हम लोग खुश ही तब फील करते हैं जब हम लोग वी गो आउट देयर, वी वर्क टुवर्ड्स समथिंग एक्टिवली, वी ब्रिंग समथिंग टू द हाउस होल्ड। खुद अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, हम घर वालों हम घर वालों के ऊपर लगाएंगे, उनको देंगे। हमारी ये सेंस ऑफ हैप्पीनेस है। एंड आई थिंक कि मॉडर्न डे सोसाइटी ने ये चीज़ इतनी ज़्यादा टेंट कर दी है कि मतलब 50-50 एंड एवरीथिंग, एंड मतलब डेट पे आता दैट्स समथिंग मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। एंड आई थिंक दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। आई थिंक ये चीज़ हम लोग एट लेंथ डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, एंड आई थिंक वी विल एंड अप ब्रेकिंग द इंटरनेट एज अ रिजल्ट ऑफ इट। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ ही मूव करते हैं। अगला सवाल, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लॉस्ट एंड व्हाट डिड इट टीच यू दैट विनिंग नेवर कुड? यार आई हैव लॉस्ट मल्टीपल टाइम्स, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर लॉस था ना, जिसमें मैंने अपना एयरबीएनबी बिजनेस बिल्ड किया, वो मेरा पहला अपार्टमेंट था इन एयरबीएनबी। वो अपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ ना कि इट वाज सिंपली कि एक्शन लेना ही लेना है। तो उसी में ना कि आई डिड नॉट डू माई ड्यू डिलिजेंस, कि उस चीज़ में रिसर्च करूँ कि मैं जगह ठीक ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। मैंने बस, लेकिन दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। उस पर आते हैं, मैंने एक अपार्टमेंट उठा लिया, मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई, उसने मुझे उस पहले वो एयरबीएनबी में यार देखो उस टाइम में ना सिर्फ ये एक हफ्ते के अंदर सब कुछ हुआ है कि मैंने डिसाइड किया मैंने एयरबीएनबी करना है। मैंने प्रॉपर्टी उठाई, अपना फ़ोन बेचा, उससे मैंने पैसे निकाले, प्रॉपर्टी उठाई और मैंने एयरबीएनबी लिस्ट कर दी। और उसके पहले
कि 23rd की बात होगी और अगले 1st को मेरा रेंट शुरू होना था उस अपार्टमेंट का। तो मतलब सब कुछ हफ्ते, तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं उसके ऊपर। मैंने एक अपार्टमेंट उठा लिया, पता चला जी कि वो बंदा जो था वो पहले एयरबीएनबी रन कर रहा था और उसका भी यही मसला था कि उसके अपार्टमेंट में जो बिल्डिंग थी ना, इट वॉज वेरी नोटोरियस फॉर पार्टीज और इस तरह की चीज़ों के लिए, जो यार मेरे एथिक्स है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों में। मैं क्यों किसी को एनेबल करूँ अपनी जगह गन के लिए यूज़ करने के लिए। तो मैंने सिर्फ उसको रखा फैमिलीज ओनली के लिए। इनिशियली फैमिलीज आई, फिर एक टाइम आया यार, आई थिंक सो पार्टीज का भी सीजन होता होगा, पता नहीं मुझे, वो पूरा ना वो बिल्डिंग एक क्लब बन जाती थी रात को, सारे दरवाजे खुले हुए, गाने। अब फैमिलीज आती नहीं है, मेरे आने शुरू हो गए, 2 बार 3 बार 1 स्टार रिव्यूज आए। गोरा आया भाई, गोरा उधर खड़ा हुआ है उधर, उसे वो पूछता इतना शोर क्यों है इधर। वो गोरे को उधर पाकिस्तानी बंदा कोई पार्टी में आया तो कहता है ये तो क्लब है। गोरे ने रिव्यू में बात ये लिख दी। अच्छा। तो फिर उसके बाद ब्रो आई हैड टू, जबकि मेरा उस पर नुकसान हुआ था यार, ये शुरुआत के लिए बहुत बड़ा नंबर था मेरे लिए 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि उसमें 6 महीने का वो था, उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व थी। सिक्योरिटी आप जब कॉन्ट्रैक्ट में चुभती है। हाँ, सिक्योरिटी जब आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हो तब आपको वापस मिलती है। तो मैंने 3 महीने में आई जस्ट लेफ्ट कि मतलब अच्छा नहीं। लेकिन उस जो 3 महीने में था ना, उसने मुझे एयरबीएनबी सिखा दिया हाउ टू ऑप्टिमाइज माई लिस्टिंग्स, किस तरह उन्हें टॉप पे रखते हैं, किस तरह डिस्क्रिप्शन, किस तरह इस ये बिजनेस फंक्शन किस तरह करता है, द मेन टीचर ऑफ द बिजनेस। उसके बाद मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया। मैंने ये नहीं क्या हो गया क्या करें अब। मैंने जो पैसे थोड़े बहुत सेव अप किए थे ना, मैंने फिर पकड़े और मैंने 2 अपार्टमेंट्स और उठाए एक और हॉलवे में। मैंने मतलब जो यहाँ से चीज़ें सीखी कि बिल्डिंग पहले देखनी है, बिल्डिंग में क्या हो रहा है, मेरी क्लाइंटेल कैसी है, मैं क्लाइंटेल लाना किस तरह की चाह रहा हूँ, सब चीज़ें पहले नोट डाउन की। फिर मैंने एक जगह निकाली, मैंने 2 अपार्टमेंट उठा लिए। प्रो अब वो विदिन 3 मंथ वो वहाँ उसी जगह पे 2 से 7 अपार्टमेंट्स हो गए। और अब उसी 7 के पीछे अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्केल कर रहे हैं, तो शायद तुम्हें आइडिया होगा। माशाल्लाह। तो ये इट वाज द बेस्ट टीचर आई कुड एवर आस्क फॉर, माय फेलियर इन माय फर्स्ट एयरबीएनबी। तू बता। विराट कोहली भी ये कहता है ना कि मतलब फेलियर इज द बेस्ट टीचर, यानी विनिंग नेवर टीचेस यू एज मच। एंड मेरे ओपिनियन में भी, मेरी लाइफ में भी इसी तरह हुआ है कि आई फेस्ड सो मेनी फेलियर्स कि मतलब अब तो काउंट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। वो भी तो लव लाइफ पे भी नहीं आए। हाँ, मतलब ये तो सो मेनी फेलियर्स। अब मैं अगर फेलियर्स को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करूंगा मैंने किधर फेल किया, तो आई वुडंट इवन बी एबल टू नेम एवरी सिंगल वन ऑफ देम। मतलब इट इज सो मच। लेकिन इन माय ओपिनियन, इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो यार, मेरे लिए पर्सनली जो पॉइंट्स ऑफ ग्रोथ थे ना लाइफ के अंदर, वो सबसे ज्यादा तभी थे जब मैंने कोई ना कोई भंड किया हो, कोई ना कोई भंड किया हो। उसके बाद जो स्प्राउट आता है ना, हाँ, समथिंग जस्ट वेंट बैलिस्टिक क्रेजी। यस, कि मतलब सारा कुछ जो है वो एफ अप हो गया। ठीक है, अब जो है वो इसको किसी तरह उठाना है। बट वहां पे एक और चीज पता है क्या इन्वॉल्व होती है? मेल ईगो। किसी जगह पे अगर आपकी ईगो हर्ट होगी, 100%, आपको किसी बंदे ने बोल दिया कि यार नहीं, तेरे से नहीं होगा, 100%, यार तू तो नहीं कर सकता, यार छोड़ दे, 100%, तब जो आपकी ईगो हर्ट होती है ना, और आप कहते हो कि भैंस की तो मैं करके दिखाऊंगा, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी व्हिच यू कुड नेवर फेस और यू कुड नेवर ब्रिंग टू लाइफ व्हेन यू आर विनिंग। ये सिर्फ फेलियर की, और जब पैर पे आगे कुल्हाड़ी लगती है ना, जो आप खुद भी नहीं मारते, कोई आगे मारता है, तो वो जब दिल को जाके कोसती है ना बात, फिर आप कहते हो कि मैं दिखाऊंगा जमाने को कि मैं एग्जैक्टली किस तरह। यार इससे ना मुझे एक दोस्त याद आता है मेरा। एक दोस्त है, उसके पास एक डायरी होती थी जेब में, ठीक है। अच्छा। व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि तूने मुझे बोला है ना कि यार वो तू मोटा हो गया, तू मतलब मोटा लग रहा है, हाँ। ठक डायरी निकालेगा, नाम लिखेगा उजैर, डेट, आज इसने ग्रे शलवार कमीज पहनी थी, इसने मुझे ये बोला। अच्छा। और तू भूल चुका होगा बात। 6 महीने गुजरेंगे, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, तू जाकर डायरी दिखाएगा, ये देख नहीं बोला था मुझे। हिसाब ब्रो, ये चीज एक बहुत ड्राइविंग फैक्टर है एक मर्द का, कि मतलब कोई तुम्हें कोई बात कर दे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमने करके दिखाते हो वो चीज। टेक इट पर्सनली, यू टेक इट पर्सनली एंड यू शुड टेक इट पर्सनली। व्हाई टेक डिसरिस्पेक्ट? यस, you should use that as a driving force for yourself to build an empire. Bro, तू रियलाइज नहीं करेगा, शायद वो तेरी भी कोई ऐसी बात होगी जो तुझे अभी तक ड्राइव कर रही है अंदर से, कोई ऐसी चीज हुई होगी। ये एक सब बिफोर जिम भी कुछ होता है जिसकी वजह से हम जिम में पहुंचते हैं इनिशियली। जिम भी शुरू करने की कोई ना कोई वजह होती है। यस, कोई ना कोई वजह होती है, हम जिम तक भी पहुंचते हैं। जिम का भी एक प्रीकर्सर है। फॉर श्योर। और मैं ये चीज़ यार अपनी कम्युनिटी के अंदर, एक बॉय ने सवाल पूछा हुआ था कि यार मुझे जो है वो मेरे एक प्रोफेसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुली करते हैं कि ही इज़ वेरी एरोगेंट एंड ही ट्रीट्स मी रियली बैडली ना, एंड ही कॉल्स मी XYZ। अब आई वोंट नेम व्हाट दैट XYZ इज, बट it wasn't something that was very derogatory,
आई थिंक इट वाज समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ कि मतलब आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो और आप बहुत ओवर स्मार्ट किस्म के स्टूडेंट हो ना, तो उसको ये चीज़ हर्ट करी थी कि उसके प्रोफेसर जो है वो उसको ओवर स्मार्ट बोल रहे हैं। तो मैंने उसे एक ये एडवाइस दी कि यार देखो, क्रिटिसिज्म अक्सर हमें हर्ट सबसे ज़्यादा तभी करता है when there is a little bit of truth to it. हम लोगों को दिल के अंदर डीप पता होता है कि शायद ये जो बात मेरे खिलाफ कर रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ सच होगा। हमें पता होता है कि जैसे मोटे बंदे को सबसे ज्यादा हर्ट तभी करते हैं कि जब कोई बंदा उसकी चर्बी पकड़ ले। यस, तो उसे मोटा ही बोल दो, वो हर्ट हो जाएगा। किसी के सामने बोल दो कि यार जिस तरह सबको नजर नहीं आ रहा कि वो मोटा है, मतलब एक्सेप्टेड, फर्स्ट कम्स एक्सेप्टेंस, उसके बाद उस पर काम शुरू होता है। यस, तो मैंने उसे बोला कि यार आई वांट यू टू राइट डाउन ऑन योर डायरी कि उन्होंने जो तुम्हें ओवर स्मार्ट बोला है, आस्क योरसेल्फ कि डू यू रियली थिंक कि देयर इज सम ट्रूथ टू इट, बिकॉज देयर माइट बी। Ask yourself that. Be introspective. I think introspection is very important for a man especially. तो वो इंट्रोस्पेक्शन मैंने उसे करने को कहा और मैंने कहा कि यार पहले come up with an answer to this. एंड दूसरी ये भी चीज़ करो कि यार उन प्रोफेसर को वैसे ही अपनी क्लासेस के अंदर थोड़ा सा अवॉइड करो। ट्राई टू मेक श्योर कि यार थोड़ा सा डिस्टेंस रखो उनके साथ क्लासेस में, एंड डोंट ट्राई टू बी टू प्रोमिनेंट इन हिज क्लास। बहुत ज़्यादा जो है वो डोंट मेक अ फस इन हिज क्लास, ज़्यादा बातें वगैरह ना करो, डोंट कम टू द फ्रंट लाइन्स, बट एट द सेम टाइम ये क्रिटिसिज्म जो तुम्हें हर्ट करे, दिस इज सपोज टू टेल यू समथिंग। आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ दैट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। यार इसमें मेरा ओपिनियन ये है ना कि एवरी सिंगल पर्सन यू फेस इन लाइफ, एवरी सिंगल पर्सन, वो चुना चाहिए एक भिखारी क्यों उनसे पैसे क्यों ना मांगने आया हो, एवरीबडी हैज़ अ लेसन टू टीच यू। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल यार हमने ज़्यादा 50 साल नहीं किया था, किसी ने 30 साल भी उम्र गुजारी हो किसी वजह से 30 साल, देखो ही हैज़ अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस टू लाइफ, ही हैज़ समथिंग टू टीच यू। हर बंदे से सीखने की भी कोशिश करो, द लर्निंग, हर बंदे का बेशक बच्चा हो, बी अ स्टूडेंट टू हिम, दैट्स अ विनर। बीइंग अ स्टूडेंट के मतलब एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मुझसे कुछ ज़्यादा जानता है। देखो, बी अ लिसनर। जो हम पाकिस्तानियों में मसला है ना कि हम लोग एक दूसरे पर रिजेक्ट करते हैं, हम लोग सुनने के हक में नहीं होते, हम सुन ही नहीं सकते थोड़ी देर, हम तो बर्दाश्त नहीं होती है बात, लेकिन सब जरूरी चीज़ ये सुनना है। लोग जो बातें कर रहे हैं, जो तुम चीज़ चाहते हो तुम्हें शायद सुनने से ही मिल जाती है। और ये एक एक्चुअली रिसर्च है कि मतलब नेगोशिएशन वर्क बेटर जो बंदा ज़्यादा सुन रहा हो बात को। You'll notice कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और अचीव्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली क्वाइट। वो उस तरह के नहीं होंगे कि यार वो ज़्यादा लाउड माउथ किस्म के बन रहे हैं, they're trying to express themselves too much. They'll be quiet in the corner, they'll be listening to everything. Basically जो बोल रहा होगा ना बंदा, he is overcompensating for their lack of knowledge, कि मतलब हाँ मुझे भी नोटिस करो, मैं भी हूँ कमरे में। सबसे पावरफुल बंदा एट द एंड ऑफ द डे वही है जो खामोश बैठा है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड एडिंग टू योर पॉइंट कि देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, I think even if someone is less achieved than you, 100%. even if someone is 100%. less achieved than you, आप फिर भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। Why? Because smart people learn from their mistakes, but the smartest people learn from the mistakes of others. मैं भी यही कह रहा था। तो even अगर तुम्हारे से कोई सक्सेसफुल बंदा नहीं है और तुम्हारे से बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर वो खड़ा हुआ है, उससे बेशक नसीहत लेने के बजाय उसकी मिस्टेक्स से लर्न करो, so that you don't make the same mistakes. That is the mark of an intelligent and winner mindset. Exactly. तो it's not necessarily कि यार आप सिर्फ winner से ही सीख सकते हो. There's a lot of knowledge that losers are going to give you as exactly. well. इसी में एक और चीज़ भी आती है कि that's why I recommend reading books. ये बुक्स के अंदर सारी नॉलेज लोगों के जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे हुए किताबों में आपके लिए, यू शुड गो थ्रू देम। मतलब अपना दिन का मैं एक टाइम रखता हूँ कि बस मैं किताब पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए मैं भी ऑफिस है, एक बैग के अंदर मेरे भी किताब पढ़ी हुई, उसके एक बुक मार्क लगा होगा, मैं इधर पढ़ रहा था, वेला होऊंगा मैं किताब खोल लूँगा। मतलब बुक्स हैव इन्फिनिट नॉलेज फॉर श्योर, और यू कैन ईजीली ग्रास्प देम। और सिर्फ नॉलेज गेन करना मकसद नहीं होता। जिस तरह यार किसी बंदे को फॉर एग्जांपल बात करनी नहीं आती, ठीक है, वो बोल नहीं सकता और वो सीखना चाहता है बोलना, ही बाइज अ बुक कि हाँ हाउ टू टॉक टू पीपल फॉर एग्जांपल। जिस तरह या तुम्हारी वीडियोस देख लेता है, किसी की वीडियोस देख लेता है सेल्फ हेल्प पे, और वो बोलना सीख रहा है। यार उस नॉलेज का फ़ायदा ही नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली वो नॉलेज, इफ़ यू टेक नॉलेज, उसको यू जस्ट गिव इट आउट, इम्प्लीमेंट इट, फिर आप सीखते हो वो चीज़। क्योंकि देखो एक चीज़ बुक पे परफेक्टली लिखी हुई है, एक बंदा ऑलरेडी कर रहा है उस चीज़ को परफेक्टली, आप उसको कॉपी करोगे, आप उसको 100% कॉपी कर भी नहीं सकते क्योंकि यू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। चलो आप कॉपी कर भी लेते हो, यू वोंट हैव द सेम रिजल्ट क्योंकि यू डोंट हैव द प्रैक्टिस इन। कि जिस तरह बोला हुआ है कि थिंक स्लो और स्टटर ना करो, मतलब अब आप वो चीज़, हाँ बस मैं बात करूंगा तो मैं आहिस्ता सोचूंगा, मैं स्टटर नहीं करूंगा, और लेकिन नहीं होता ब्रो, उस तरह हो ही नहीं सकता।
यार असल में लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, उससे लेके आउटकम तक मल्टीपल डिफरेंट पाथ्स हैं। ओ आप जिस बंदे की किताब पढ़ रहे हो ना, उसने एक पाथ चूज किया था, बट दैट डजंट मीन कि आपका पाथ भी एग्जैक्टली सेम होगा। एग्जैक्टली यू हैव टू वॉक योर ओन पाथ, मेक योर ओन मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम, इवेंचुअली आप भी उस आउटकम तक पहुंच जाओगे। बट यू हैव टू वॉक योर इंटायरली यूनिक जर्नी। डोंट एक्सपेक्ट टू फेस द सेम प्रॉब्लम्स दैट द अदर पर्सन फेस्ड, जो उस जर्नी तक, जो उस आउटकम तक पहुंचा है। यू विल फेस इंटायरली डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और हम लोगों ने भी बिजनेसेस के अंदर ये चीज़ कितनी ज़्यादा नोट की है कि यार हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में सोच रहे थे, इतना ज़्यादा सोच के अपने ओवरथिंक कर करके अपने दिमाग को तबाह कर रहे थे, व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड एक्सिक्यूटिंग ऑन दैट, तो वो प्रॉब्लम इनटू एग्जिस्टेंस आई नहीं। बट जो 100 प्रॉब्लम्स हम लोग जिनके बारे में हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था, वो रैंडमली दे शो अप आउट ऑफ द ब्लू। तो आपको जो है वो सबसे बड़ा टीचर आपके लिए एक्शन होगा। कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन इज समथिंग दैट एब्सोल्युटली एवरीवन कैन डू। व्हाट डिफरेंशिएट्स द 1% इज एक्शन। So you have to ask yourself, do you really have the balls to take action? Exactly. Or are you just continuously going to keep watching videos like this? जहाँ पे लोग आपको कोई नसीहत दे रहे हैं। Because trust me, this is just mental masturbation. Oh, nothing else. आप जब कॉन्स्टेंटली चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो, इवन इफ वो सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नीश के अंदर है, अगर आप कॉन्स्टेंटली उनको कंज्यूम कर रहे हो लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो दे आर कम्प्लीटली यूजलेस। दे आर मेंटल मैस्टरबेशन। 100%. आपकी what matters is your implementation, your action, how you go about the whole process, and the man you become as a result of it. 100%. If you're not going to allow yourself to feel that experience and walk yourself down that journey, तो all of these videos are absolutely useless. 100%. कोई फ़ायदा नहीं इन वीडियोस का। इसी पे मैं एक और चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग ना समझते हैं कि देयर इज़ अ मैप टू सक्सेस, कि मतलब ये रास्ता है, यहाँ जाएंगे हम, ये सक्सेस अचीव कर लेंगे। जबकि यू शुड जस्ट नो योर डेस्टिनेशन और हैव अ कंपस इन हैंड कि मेरी डायरेक्शन वो है, मुझे उधर उस डायरेक्शन में जाना है बस। बाकी जो चीज़ें हैं वो जो बाकी लोगों ने फेस की, वो मैं आपको गारंटी कहता हूँ वो प्रॉब्लम से फेस ही नहीं करोगे कभी। मैंने अपना एयरबीएनबी शुरू किया, मैंने किसी की वीडियो देखी नहीं एयरबीएनबी काम किस तरह करता है, मुझे ऐप यूज़ करना नहीं आता था ब्रो। मैंने मतलब अपना एयरबीएनबी स्टार्ट करने से पहले रात को बैठ के जिम के अंदर, जिम लगाने के बाद अपने फ़ोन में मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा था कि ओ क्या करना है, और उसी रात को मेरी बुकिंग आ गई। और फिर मैं एक बंदा और था, मैंने उसको कॉल की जिसने मुझे अपार्टमेंट रेंट आउट किया था, मैं उसको कॉल की कि ब्रो अब ये मैसेज आ रहा है, मुझे क्या करना है ब्रो, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर और करना ये हुआ कि उसी दिन मेरी बुकिंग आई फॉर द 15 days ऑफ माई फर्स्ट मंथ। मेरा अपार्टमेंट बुक था, गोरा आ रहा था बाहर, उसने कहा मैं बुक कर रहा हूँ। ब्रो मतलब वो मसले आप फेस ही नहीं करोगे। लोगों के मसले आते हैं इस तरह एयरबीएनबी के पहली बुकिंग लेना मुश्किल है, किस तरह लेंगे। मुझे तो ये चीज़ फेस ही नहीं करनी पड़ी। आई फेस समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट कि मुझे पता ये ऐप काम किस तरह करता है। मुझे तो ये सब मैं तो पहुंचा ही नहीं हूँ ना कि इसको चलाऊं किस तरह। मैंने तो अभी डाउनलोड किया, अभी अकाउंट बनाया, और 24 घंटे मेरा आईडी कार्ड वेरीफाई करने में लेंगे लेकिन वो करते करते यहाँ तक पहुंच गए ना। और बीच में और मसले ही बहुत किस्म के आए हैं यार मतलब जिस तरह एक बार एक गार्ड का मसला हो गया, बिल्डिंग के गार्ड का मसला हो गया था। कौन एक्सपेक्ट यार, मैं आप एयरबीएनबी रन कर रहे हो, ठीक है, एक उसमें रोज़ गेस्ट आते हैं, तो एक दिन एक्सपेक्ट करेगा कि साथ वाला ना एक जिसने वो अपनी दुकान रखी हुई है उसी तेरे अपार्टमेंट के साथ, वो डिसाइड करता है उसने एक नया गार्ड रखना है और वो पठान है गार्ड। वो नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, लेकिन वो समझ जाओ ना कि मतलब वो टिपिकल पठान, दाढ़ी बड़ी रखी हुई है उसने, और वो सही खर वाली पश्तो बोलता है, और वो खड़ा हुआ है ना। और हमारे फीमेल्स क्लाइंट्स आती हैं इस तरह की आती है, वो हर किसी को रोक रहे हैं कि मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तुम हो कौन। और उस बंदे को बोला है जाके कि ब्रो क्या सीन, ये हमारे अपार्टमेंट है, तुम इधर क्या कह रहे हो। आगे से वो आपको बोले कि ये वाला देख रहे हो, ये मेरे साहब ने मुझे यहाँ रखा है, मैं यहाँ से गुजरते हैं, मेरे रास्ते में आता है, मैं तो पूछूंगा। इस तरह के मसले आते हैं। वो तो हमने डील कर लिया, मसला थोड़ा लंबा चला, हमने ओनर से बैठे, हमने कहा क्या सीन है, वो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक रैंडमली एक गार्ड आएगा, वो हमारे गेस्ट को तंग करना शुरू कर देगा। नहीं, एवरीबडी, शायद किसी चंद लोग एयरबीएनबी रन कर रहे हो, उन्होंने आज तक ऐसा मसला देखा भी ना हो, मतलब सोचा भी ना हो, मतलब। लेकिन ये हमारे लिए कम्प्लीटली एक नई चीज़ थी, लोगों के लिए नई चीज़ होगी, कंप्लीटली ऑफ द बुक्स, कंप्लीटली ऑफ द बुक। मतलब इसे डील किस तरह करना है। अब नाउ वी आर इन द थिक ऑफ इट, अब हम हल कर लेंगे, यही असूल है। इसीलिए मैं तुझसे पूछूंगा कि how to deal with failures and setbacks. तू किस तरह डील करेगा with failures and setbacks? I take them personally. I honestly take every failure and setback personally. I think it is supposed to teach you a lot as a man, and I think कि अगर आप उस चीज़ को personally लोगे and you take self accountability for it, सिर्फ तभी आप उससे as a result grow कर सकोगे. Because
at the end of the day, failure and the energy you feel as a result of it is unlimited. बहुत एक unlimited level of energy आपको महसूस होती है when you face failure. And I think if you're man enough to take self accountability for it, and आप दूसरे लोगों को नहीं blame करने लगते, तो it is going to be your best teacher. ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ गलत हो जाएगी ना, वो पहला काम ये करेंगे पॉइंट द फिंगर एट समवन. किसी ना किसी बंदे को बोलो तेरी गलती थी, तूने सही टाइम पे ये चीज़ नहीं डिलीवर की. भाई एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज योर फॉल्ट. एवरीथिंग इज योर फॉल्ट. द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग XYZ अमाउंट ऑफ डॉलर्स पर मंथ इज योर फॉल्ट. ये पॉडकास्ट में पंखा गिर गया है, योर फॉल्ट, हमारी गलती है. सारा नहीं होता, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन सोच गिर जाए. लेकिन कहने का मकसद है इसके आप जब तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते एज अ मैन, तो तब तक आप अपनी ग्रोथ को खुद ही स्टंट कर रहे हो. दैट इज सो इम्पोर्टेंट इन द मैस्कुलिन एक्सपीरियंस. इफ यू नॉट मैन इनफ टू से टेक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आप जिंदगी में कहीं भी नहीं पहुंचने वाले. और मैं ये चीज़ कितनी दफ़ा बोलता हूँ कि भाई जिन टाइम्स में मैंने फेलियर्स और सेटबैक्स फेस किए, उनके बाद द फॉलोइंग मंथ्स मुझे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली अपनी लाइफ के अंदर. तो आई थिंक इफ़ यू लेट इट टीच यू समथिंग, so it can do wonders for you. But if you're arrogant and you're going to point fingers at someone else, तो फिर it's going to be very detrimental for you. 100%. Because देखो inevitably you're going to face failures. हाँ, 100%. So instead of having a negative relationship with them and being so scared to fail at something, why not just come to grips with it कि यार हाँ हो जाएगा कभी कभी, but you learn as a result of it. So instead of being scared of making the wrong move and failing, be encouraged by the fact कि यार अगर wrong move कर भी लिया तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा. तो allow yourself to feel exactly. इसका अकाउंटेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री. लेकिन इसका एक और तरीका भी है, तेरी बात से मैं एग्री करूंगा कि इसको इस तरह कर लेते हैं कि रीफ्रेज सेटबैक्स और फेलियर्स को टीचर्स बोलो, दे आर योर बेस्ट टीचर्स. सेटबैक्स को चैलेंजेस समझो कि समथिंग ये दीवार आई है, ये नहीं कि मैं मुड़ रहा हूँ यहाँ से, हाउ डू आई स्केल दिस वॉल. कि जिस तरह एक K2 चढ़ना है ना, अगर आप पहाड़ चढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, आप जितना मर्जी प्रिपेयर हो, ब्रो अनसर्टिनिटीज इतनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, इन्फिनिट. मतलब ठंड ज़्यादा हो गई, एयर फ्लो ज़्यादा है, कुछ भी मसला हुआ. अब वो चैलेंजेस हैं जो आप यू आर इन द थिक, आप उधर खड़े हो, K2 तू आधा K2 चढ़ चुका है, ठीक है. अब तू आगे भी नहीं जा सकता, तू पीछे भी नहीं जा सकता. अब यहाँ पे कोई चैलेंज, तू वहाँ मरेगा तो नहीं ना ब्रो, एटलीस्ट यू विल फाइट फॉर इट. तो मतलब उस चैलेंज को किस तरह क्लियर करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, रादर देन पैनिकिंग कि अब मैं क्या करूँ, किस पे ब्लेम डालूँ, क्या करना है यहाँ पे. जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कि हाँ, हाउ डू आई पिवट फ्रॉम हियर. बेसिकली देखो, पिवट करना बहुत ज़रूरी है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक दीवार आ भी गई और वो नहीं हिल रही है आपसे, पिवट. ये नहीं है कि यू हैव फेल्ड इन लाइफ, पिवट किसी और डायरेक्शन में पिवट कर लो. हाँ, आई कुड टेक दिस टू दिस डायरेक्शन. सेल्स नहीं हो रही, चलो अगर मैं कन्वेंशनल मार्केट कर रहा था इंस्टाग्राम से, नहीं काम कर रही वो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अखबार में इश्तेहार लगवा देता हूँ, मैं TV ऐड ले लेता हूँ. मतलब यू नीड टू लर्न हाउ टू पिवट. ये बहुत ज़रूरी है. अडाप्टेबिलिटी, अडाप्ट करना है आप लोगों को, हर मसले में अडाप्ट करना है. ये वही बात फिर आ जाती है ना कि आपके पास कोई नक्शा नहीं होना चाहिए कि मैंने यही चीज़ करनी यहीं से है. देयर आर इन्फिनिट वेज ऑफ डूइंग अ थिंग, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. इससे मुझे एक और एनालॉजी आई है माइंड में. जब मैं कोई YouTube की वीडियो बना रहा होता हूँ ना, और मैंने सेट स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है एज टू एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड व्हाट आई हैव टू से, मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टटर करता हूँ. बिकॉज मुझे पता होता है कि यार वो बीच में एक लफ्ज मिस हो गया, तो मेरा परफेक्शनिस्ट माइंड जागेगा, वो कहेगा कि यार रिपीट दिस फ्रेज अगेन. बट व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ द रिप नेचुरली विद समवन, तो आई रेयरली एवर स्टटर. यस. तो जब आप हर चीज़ बाय द बुक्स करने की कोशिश करोगे, यू ट्राई टू मेक श्योर कि हर चीज़ परफेक्ट है बिफोर स्टार्टिंग, तो दैट मोस्टली वोंट बी द केस. यू विल प्रॉब्ली एंड अप डूइंग थिंग्स रॉन्ग. In that context, I'd like to ask you a certain question. If you had to train someone to become a winner in 12 months, what would that blueprint look like? पहले 6 महीने कुछ भी नहीं कर रहा जिम के अलावा वो. अच्छा. कुछ भी नहीं कर रहा जिम के अलावा. सुबह उठ रहा है वो जल्दी, ही इज गोइंग फॉर जॉग, वो अपना डिसिप्लिन बिल्ड करेगा. पहले सेल्फ बिलीव, मेंटल रेजिलियंस, इन चीज़ों पे काम होगा. बेसिकली द प्लेटफॉर्म्स विल बिल्ड द प्लेटफॉर्म फिर. बाकी फिर 6 महीने में जो उसका गोल है, फॉर एग्जाम्पल क्या गोल, पैसे कमाना गोल है, जो भी गोल है, हाँ पैसे कमाना गोल है, देन वी वर्क ऑन दैट. कि पहले हमारे
कि हमें पता हो कि हाँ हम इसके लिए इस चीज़ पे 6 महीना कमिट तो करेंगे ना, कि हमने पहले 6 महीने कमिट किया जिम के ऊपर, हमने डिसिप्लिन सीख लिया और हम बाकी 6 महीने साथ साथ जिम भी कर रहे हैं, वे डिसिप्लिन, हम रोज़ फिर भी जिम जा रहे हैं। और अब जो बाकी 6 महीने अब हम मनी मेकिंग पे काम करेंगे, अब कोई बिजनेस आइडिया डिस्कस होगा, अब हम पैसों की बात भी शुरू करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। बेसिकली डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू डू एवरीथिंग जो रोज़ करनी है आपको। जिस तरह यार अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा है जिसको मैं कहूँ हाँ कल से तू बिजनेस कर रहा है, लेकिन तेरा बिजनेस इस तरह का है कि तुझे सुबह 9 बजे लेबर को लगाना है, फिजिकल बिजनेस है कोई, तूने 9 बजे लेबर को लगाना है, ब्रो अगर वो एक दिन वो सोता होगा 3 बजे, उसको नहीं परवाह, पार्टी सीन है उसका, और तू एक दिन से कहेगा सुबह 9 बजे उठना शुरू कर, हफ्ता करेगा काम, ही इज बाउंड टू फेल। तो बेसिकली उसके पास वो एप्टीट्यूड हो, मेंटल रेजिलियंस हो कि हाँ मुझे करना है, देयर इज़ नो फॉलिंग बैक, कोई बैकअप ऑप्शन ही नहीं है। मैं इस तरह इस चीज़ को खुद पर्सनली डील करता हूँ कि मैं शायद तुझे ये बताया कि मैं इस तरह बोलता हूँ कि आई एम ऑल इन, या तो मैं आई विल हैव एवरीथिंग या आई विल हैव नथिंग, या तो मैं कल रोड पे होऊंगा या तो कल मेरा सब कुछ होगा कमिंग फ्यूचर। तो इसी वजह से ना कि मतलब देयर शुड नेवर बी अ प्लान बी, कि मतलब एक चीज करनी है तो करनी है यार, मतलब प्लान बी रख के क्यों अपने आप को दिलासा दे रहे हो अगर ये ना हो मैं यह कर लूंगा। मोस्टली जब लोगों का प्लान भी होता है दे डोंट गिव देयर 100% टू प्लान, नेवर डू, बट जब उन्हें पता होता है ना देयर इज नो सेफ्टी नेट, अब तो भाई अगर कुछ एफ अप हो गया तो फिर बस पीछे रोड पे ही है, रोड पे तो फिर 100% एफर्ट 100% जाता है। वो एक एंडी एलियट की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बोलता है कि यार अब ही इज द सेल्स गाय ना, जो देखा होगा बॉल्ड गाय, टाइट सी शर्ट्स पहनता है और हाँ, तो अब उसने जो है वो उसकी एक रील आई हुई थी, उसपे वो एक बंदे को जाके बोलता है हाउ मेनी कार्स कैन यू सेल इन 1 month, तो वो कहता है 6, तो कहता है इफ आई हैड किडनैप्ड योर चिल्ड्रन and told you कि भाई they'll only be freed until you sell 15 cars, so would you sell 15 cars? So he said 100%. So then what's stopping you? Exactly. इसका मतलब ये है कि इम्पल्स पीछे से बहुत स्ट्रांग नहीं है ना, तो यस जब when there is no plan B, there is no safety net backing you and you know कि you have to be all in, तब आप किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ ही लेते हो। और वो कहते हैं कि भाई जब आप खुदा को ये चीज़ दिखा रहे होते हो ना अपने एफर्ट से कि आई एम हियर फॉर द लॉन्ग रन, आई एम विलिंग टू पुट इन 100% एफर्ट इनटू व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम डिसिप्लिन्ड, आई विल डू एवरीथिंग राइट, आई विल मेक श्योर कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपको डिसअपॉइंट ना करूं, तो 100% वो तुम्हें ब्लेस करेंगे। बट पीपल डोंट गो इनटू थिंग्स 100%, वो अक्सर हाफ एस करते हैं चीज़ों को, वो चाहते हैं कि यार वो साथ कंफर्ट भी मिले, सुकून भी मिले, आसान मिले सब कुछ। So that's not going to be the case. You're going to, in your 20s, you have to be working like a dog. You have to be working like a dog because there are people out there who are working every waking moment of the day and night. There are people like me and you out there. तो जब इस तरह के लोग exist करते हैं, these people are your competition. How do you expect you can just roll out of bed in the afternoon, घंटे के लिए काम करो और फिर घर चले जाओ? You're going to end up losing, respectfully. 100%. तो इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट एंड हो सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा डाउन हूँ, ठीक है, लेकिन आई विल एंड अप अचीविंग मोर देन यू बिकॉज आई जस्ट पुट इन मोर एफर्ट। ज़्यादा डाउन है, यू विल अचीव मोर। वो तेरे पास उतनी थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है कि तू डिसाइड कर पाए कि वो ये थ्रेट है कि नहीं, तू बस कर देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल मेरा तेरे लिए है, एक विनर के लिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर फॉर अ विनर। यार I'll answer this question with a personal experience. मैं एक दफ़ा एक पब्लिक स्पीच करने के लिए गया हुआ था, तो हालांकि I've had a lot of exposure of talking to a myriad of audiences and people and मैं रोज़ जो है वो लाखों लोगों के सामने बोलता हूँ, मैं Instagram पे, YouTube पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लेकिन उस मोमेंट में I felt so scared कि मेरे सामने एक 1000-1500 लोगों का क्राउड था एंड आई वाज लाइक यार मैं कहीं ऊपर जाके स्टेज पे कुछ उलट पुलट ना बोल दूँ, तो वो फियर मैं फील कर रहा था बहुत ज़्यादा। बट क्या उस फियर ने मुझे प्रिवेंट किया फ्रॉम गोइंग अप ऑन स्टेज एंड डिलीवरिंग द स्पीच एनीवे? दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट अ कावर्ड एंड समवन हु इज करेजियस। कावर्ड को डर लग रहा होता है और वो एक्शन नहीं लेता बिकॉज ऑफ हिज फियर। करेजियस को भी डर लग रहा होता है बट ही टेक्स एक्शन एनीवे। तो you're supposed to be the courageous one instead of being a coward. डर सबको लगता है, मुझे भी, इवन
मैंने 1000 पब्लिक स्पीचेस भी डिलीवर कर ली, मैंने 1000 दफ़ा कैमरे के सामने बोल लिया, फिर भी मुझे एक सर्टन सेंस ऑफ एंजाइटी महसूस होगी, बेशक वो कम हो जाएगी, सर्टन सेंस ऑफ एंजाइटी फिर भी महसूस होगी. बट विल आई टेक द कावर्ड्स वे आउट, और विल आई जस्ट से कि यार आई एम फीलिंग द फियर, आई एम एक्नॉलेजिंग इट, बट आई एम गोइंग टू डिलीवर द स्पीच एनीवे, आई एम गोइंग टू डू द डिफिकल्ट थिंग एनीवे. That is what differentiates a coward and someone who's courageous. So fear is something which you're supposed to let yourself feel. It's supposed to tell you कि यार हाँ, what I'm about to do is something important. It's something which will bring about growth. But वही कहते हैं ना कि भाई डर के आगे जीत है. यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बेसिकली एसेंशियली. वो आपको बॉडी बता रही है, और हाँ यू शुड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपके लिए बहुत जरूरी है वो चीज. ग्रोथ ऑलवेज हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. यार इसीलिए ना मैं इस चीज़ में भी बिलीव बहुत करता हूँ कि एक माँ को चाहिए ना, वो जितने जल्दी अपने बेटे को इंडिपेंडेंट अपनी अम्ब्रेला के नीचे से निकाल सकती है वो निकाले, ताकि वो लड़का सीखे. वो लड़का बचपन से सीखना, वो मार खाता है, लड़ना सीख जाता है. मतलब बच्चे इसी तरह काम करते हैं एक्चुअली, हम लड़के इस तरह काम करते हैं. तो ये जो हम लोग ना जो अपनी माओं के अम्ब्रेला के अंदर रहते हैं कि हमें अपना खाना बनाना नहीं आता, हम कोई चीज़ अपनी माँ के पूछे बगैर नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ से भी बाहर आना चाहिए. बहुत ज़रूरी है फॉर अ विनर. यार आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक कि पाकिस्तानी लड़कों की जो है वो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इट प्लेग्स पाकिस्तानी मैन सो मच कि वो कभी भी अपने माँ बाप के साए के नीचे से नहीं निकलते. वो 20-25 साल के हो जाएंगे, फिर भी ट्रिप पे जाना है तो अब्बा से पैसे लेने, अम्मा से इजाज़त लेनी है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप अपने पैसे नहीं कमाना शुरू करोगे ना, और जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, तब तक आप मर्द नहीं बने. यू आर नॉट योर ओन तब तक रिस्पेक्टफुली आप बच्चे ही हो. यस, यू आर अ किड. तो आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट ना करो कि अंडर योर मॉम एंड डैड्स अम्ब्रेला यू कैन डेवलप इनटू अ ट्रू मैन. आप असल मर्द तभी बनोगे जब आप उनके अम्ब्रेला से निकलोगे. यू विल फोर्स योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विच इज योर हाउस होल्ड एंड योर मॉम एंड डैड्स शैडो. जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे, तब तक असल ग्रोथ आपकी नहीं होने वाली, तब तक आप मर्द नहीं बने, तब तक रिस्पेक्टफुली आप बच्चे ही हो. मैं इसी वजह से इतना ज्यादा लड़कों को प्रीच करता हूँ कि यार स्टूडेंट हो तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉट मेकिंग मनी. जॉब करते हो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर नॉट मेकिंग मनी. The only reason you're not making money is not because you don't have time for it. It's not because you're too busy studying. It's because of you. तुम्हारी अपनी गलती है. You're basically playing yourself out of situations before you even start. आप जब तक जवानी के अंदर पैसे कमाना नहीं सीखोगे, तब तक वो सेंस ऑफ लिबरेशन नहीं महसूस होगी. मैं प्रीच करता हूँ कि अर्ली मैरिज होनी चाहिए. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अर्ली मैरिज होगी unless you're not making money for yourself. बहुत young and अगर आप conventional career path के through पैसे कमाना शुरू करोगे, तो yes you are going to achieve financial freedom, but 30-32 साल की उम्र 33-32 हाँ, तो बस फिर कर लेना 32-33 साल की उम्र पे शादी. Isn't it better कि यार आप अर्ली एज पे पैसे कमाना शुरू कर दो, ताकि जब आप लड़की का हाथ मांगने के लिए गए हो, तो जब आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा आमदनी का, करते क्या हो, तो आप कुछ आगे से बोल भी सको, सीना तान के बोल सको. बट लड़के जो है वो दे आर टू बिजी स्क्रोलिंग रील्स दीस डेज. वो दे कांट पुट देमसेल्व्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स एंड गेट देमसेल्फ टू स्टार्ट अर्निंग मनी एट एन अर्ली एज. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नेवर बीन ईजियर. इट्स नेवर बीन ईजियर. लड़कों के लिए सबसे बड़े दुश्मन वो खुद हैं. वो कहते हैं कि यार जब आप जीरो से लेके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तक बात कर रहे होते हो ना, मतलब लेट्स से इफ यू आर मेकिंग एनीवेयर बिटवीन 0 to 5 लाख रुपीस पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ तक जो है वो कोई भी बंदा आपका दुश्मन नहीं है. आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो. आप खुद सेल्फ सैबोटाज करके यू विल प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम सक्सीडिंग. तो व्हाई नॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड, बी योर बेस्ट पार्टनर, अलाउ योरसेल्फ टू ग्रो, मेक मिस्टेक्स, start earning money as soon as possible, gain financial freedom, even if you're a student, even if you're a jobbie, and using that financial freedom, gain the leverage to get married as soon as possible. रिस्क बढ़ेगा और you will end up living a very good life. Why don't you do that? यार तूने अभी स्क्रोलिंग वाली बात की थी, उससे स्क्रोलिंग वाली बात से एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करता हूँ, द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. कि मतलब एक ही जगह, जिस फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, इसी पे एक बंदा नेटफ्लिक्स देख रहा है और इसी पे एक बंदा करोड़ रुपए कमा रहा है. और बोथ आर यूजिंग द सेम थिंग. और एक बंदा एक्सक्यूज ये कह रहा है कि यार मेरे कुछ है नहीं, तो नेटफ्लिक्स क्यों देख रहा है भाई. मतलब लर्न द स्किल्स. इंटरनेट पे सर्च करो कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मैं कोई 1000
आर्टिकल्स मिल जाएंगे गिविंग यू एग्जैक्ट टिप्स कि इस तरह स्टार्ट करो, यहाँ से रिसोर्सेज लो, ये सब चीज़ें। लेकिन वो यही बात है ना कि हम अपने आप को सेफ्टी नेट, अपने पेरेंट्स का सेफ्टी नेट है हमारे पास, हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम क्यों, बेसिकली हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे होते। हमें सीखना है कि अपनी कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलते हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर हम जिस तरह पहले भी बात डिस्कस हुई है, अपनी छोटी छोटी हैबिट से बाहर निकलते हो कि मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन लाइफ। कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन से ही आप उठो सुबह को 5 बजे उठना, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर मॉर्निंग पर्सन, जिस वेब की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात, सुबह 5 बजे उठता है कोई बंदा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेगा, उठता है दोपहर के 3 बजे, 12 बजे, 10 बजे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते 5 बजे की हैबिट बिल्ड करो। इसी तरह जिम नहीं जाते, एक दिन जिम जाओ, अगले दिन नहीं पता नहीं आता कुछ कि किस तरह वेट किस तरह लिफ्ट करते हैं, क्या करना है, जाओ। तुम अब जिम के पैसे दे रहे हो ना, अगर तुम खुद कमाए हुए हो, फिर उस केस में बात रियलाइज़ होती है कि आप अपनी जेब से 15,000 फॉर एग्जांपल जिम का दे रहे हो, तो आप बैठोगे और आप फिर सर्च करोगे किस तरह, भाई मैं अपने 15,000 महीने का ज़ाया कर रहा हूँ, मतलब मैं किस तरह ये चीज़ करूँ। सब कुछ इसी लैपटॉप पे अवेलेबल है जिस पे आप मूवीज़ देख रहे हो। उसके अलावा बिजनेस करना है, कोई काम कर प्रो, कोई स्किल सीखो, फाइवर पे जाओ, स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन कंपनी, एक चीज़ में प्रोफिशिएंट हो, उसी के बंदे अपने नीचे लोग हायर करो, मार्केटिंग करो, गेट योरसेल्फ इन द मार्केट, चीज़ें बेचो। एडिटिंग जिस तरह यार फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग है, बिकम एन एडिटर कितना मुश्किल काम होगा यार। हमारे लिए ना हो कि हम बैठेंगे लैपटॉप लेके, हमें सीखना है तो हम सीख के ही उठेंगे, लेकिन एक एवरेज बंदा इस तरह क्यों नहीं सोच सकता कि हमने भी अगर लैपटॉप हमारे पास है, हम एडिटिंग क्यों नहीं सीख लेता। आई कुड चार्ज मनी फॉर इट, सर्विसेज हैं 2 लोगों को। एग्जैक्टली। तो यार बस यही बात है कि men these days सबसे बड़ा दुश्मन उनका जो है ना वो खुद ही है। इट्स नॉट अदर पीपल, एंड दे हैव टू लर्न टू टेक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ योर ओन फॉल्ट। तो ऑन दैट नोट आई थिंक कि बड़े मज़े की हमारी पहली पॉडकास्ट हुई है, एंड आई थिंक द नेक्स्ट वंस आर गोइंग टू बी इवन बिगर, बेटर, एंड उसके अंदर जो हम लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे होंगे दैट्स गोइंग टू पैक इवन मोर वैल्यू। तो यार इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर. Thank you so much for watching this podcast. If you liked the podcast, leave a like, subscribe to the channel, niche comment chodo, and let us know which topic you want us to address later. And remember, for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.